ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے زندگی دھوپ چھاؤں سی اور اس کی رائٹر ہے سائرہ مشال۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ شادی اور خرم سے اس نے ابرو اچکا کر ماما کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ان کا کہا جملہ یوں دہرایا گویا اپنی حصے سماعت پر شبہ ہو۔ میں نے کیا فارسی میں کہا ہے تم سے؟ فریہ کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ نو نیور ماما، آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ لہجے میں نخوت بھری خفگی تھی۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے خرم میں؟ اور تم کون سی حور پری ہو جو تمہیں بیانے کوئی شہزادہ گلفام آئے گا؟ فریہ کو اس کا مغرورانہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ماما کی صاف گوئی پر وہ جل کر خاک ہوئی۔ نہیں، شہزادہ گلفام تو آپ کا وہ لمبو سا ہے، میں تو بل بطوڑی ہوں، تو پھر میرے پیچھے کیوں سب پڑے ہیں؟ جائیے ڈھونڈیے اس کے لیے اس کے جیسی کوئی پرستان کی پری۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی منہ پھلا کر بیٹھی۔ نہ جانے کون سی مائیں ہوتی ہیں جن کو اپنی بیٹیاں پھول کلیوں کی طرح حسین اور نازک دکھتی ہیں، یہاں تو 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں تھی۔ کلپتی ہوئی دل ہی دل میں سوچنے لگی، بری بات علینا، بھائی صاحب کی خواہش ہے کہ تمہارا اور خرم کا رشتہ ہو، ورنہ تو سلمیٰ بھابھی کا ارادہ تو اپنی بھتیجی فروا کے لیے تھا۔ اس نئی اطلاع پر وہ جیسے کھل اٹھی۔ دیٹس گریٹ نیوز۔ تایا ابو سے کہیے بیجا ضد چھوڑیے، ان کے لمبوستان سپوت کے ساتھ میسنی چشماٹوں کا پیئر زبردست رہے گا۔ دونوں کی باؤنڈنگ بھی اچھی ہے، کہاں 2 گھر خراب ہوں گے، اچھا ہے کہ میں معاملہ نمٹ جائے گا۔ واؤ، رب نے بنا دی جوڑی ایک سان۔ اپنی دور اندیشی پر خود کو داد دیتے چس لیا، مگر ماما کی گھوری پر اگلا فقرہ نگلنے پر مجبور ہوئی۔ یہ جو تم دان نکال کر چسکے لے رہی ہو نا، دیکھنا بعد میں بہت پچھتاؤ گی۔ اپنے مار بھی دینا تو چھاؤں میں ڈال کے جاتے ہیں، غیروں کا کیا بھروسہ کب ڈنک مار دے۔ فریہ کے لہجے میں گہرا تعصب تھا اور ان کی برسوں بلکہ صدیوں پرانی کہاوت سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ ایک مردہ انسان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے دھوپ کی تمازت سلگائی یا چھاؤں میسر ہو؟ کم از کم مثال تو ایسی دے کہ بندہ قائل نہ صحیح مائل تو ہو۔ استضاعیہ بولتی نخوت سے بالوں کو جھٹکا۔ اس سے اختلاف تھا ان کے نظریے سے سراسر۔ رات میں اس کی بابا کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ ضیاء صاحب جو کہ روایتی سخت گیر باپ نہ تھے، تبھی وہ بھی پر اعتماد تھی۔ بیٹے، آپ کی ماما نے آپ کو بھائی جان کی خواہش کے متعلق بتایا ہوگا؟ جی، اور میں منع کر چکی ہوں، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ وہ ہنوز پر اعتماد تھی۔ اور اس انکار کے پیچھے کا محرک کیا ہے؟ فریہ کے برعکس وہ پرسکون تھے۔ خرم بہت کنزرویٹو ہے بابا، اس نے منہ بسور کر خفگی سے کہا۔ شرم کر لو کچھ، یہ جو سامنے بیٹھا ہے تمہارا باپ ہے وہ۔ اس کا منہ پھٹ انداز فریہ کو بری طرح سیخ پا کر گیا تھا۔ تم رہنے دو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ اس کے چہرے پر بگڑتے زاویے دیکھ کر ضیاء صاحب نے اپنی نصف بہتر کو ٹوکا۔ یہ سب آپ ہی کا کیا دھرا ہے جو یہ آج منہ کو آ رہی ہے۔ کر لیا آپ نے بات اور مان لی اس نے آپ کی بات۔ فریہ برہمی سے بڑبڑاتی ہوئی احتجاجاً کمرے سے واک کر گئی۔ ضیاء صاحب نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے بیٹھی علینا کی سمت متوجہ ہوتے ہنکارا بھرا۔ آپ کو خرم اس وجہ سے ناپسند ہے کیونکہ وہ کنزرویٹو ہے، پرسوچ انداز میں دہرایا۔ پھر تو میں بھی آپ کو اچھا نہیں لگوں گا کیونکہ بیجا آزادی کا حامی میں بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمائی۔ بابا پلیز، ابھی آپ مجھے جذباتی بلیک میل کر رہے ہیں اور میں آپ کو ان ٹیپیکل پیرنٹس جیسا نہیں سمجھتی جو اپنے من پسند فیصلے منانے کے لیے اولاد کے ایموشن سے کھیلتے ہیں۔ وہ لب بھینچ کر خائف سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس کے ٹھوس 2 ٹوک انداز پر ضیاء صاحب نے پسپائی اختیار کی۔ ویسے بھی وہ اولاد پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے قائل نہ تھے۔ جی بابا۔ اس کے اعتماد میں فرق نہیں آیا۔ ضیاء صاحب کسی گہری سوچ میں چلے گئے تو وہ اطمینان سے اٹھ کر کمرے سے نکلی، اپنے دھیان میں چلتی فون یوز کرتی بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ موبائل فون ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ آؤچ! منہ بسور کر سامنے دیکھا۔ خرم کی صورت دیکھ کر ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ چپٹ کر فون اٹھاتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ تم مہذب انداز میں بیٹھ کر موبائل فون کا استعمال نہیں کر سکتی؟ ان کا جواب پتھر سے آیا۔ تم تو ساری عمر جلتے ہی رہنا مجھ سے اور میری کامیابیوں سے۔ وہ ٹھونک بجا کر میدان میں اتری۔ تم اور تمہاری خوش فہمیوں کے مینار کسی دن بڑی زور سے زمین بوس ہوں گے اور اس کے نیچے تمہاری لاش ملے گی جسے کم از کم میں نہیں نکالوں گا۔ ادھار رکھنا تو خرم کی سرشت میں بھی نہ تھا۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو، کم از کم بات اچھی کر لیا کرے۔ نخوت سے ناک چڑھا کے چوٹ کی۔ آہ کاش
लेकिन यहाँ तो सूरत और सीरत दोनों का सख्त फुकदान है। सरासर तज़हीक उड़ाता हुआ अंदाज था। जब तक वो उसके फ़िक्रे की गहराई जान पाती वो जा चुका था। कमीना, खबीस, गुस्से से मुठियाँ भींचकर दांत किचकिचाए। मामा जल्दी करें, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। वो अपना कॉलेज बैग कुर्सी की पुछ से लटका कर बैठी ऊंची आवाज़ में बोली। आ रही हूँ, सब्र नहीं होता तुमसे। मदीहा को उसका यूं तेज़ आवाज़ में चिल्लाना सख्त नापसंद था। तभी पराठा और ऑमलेट उसके आगे रखते हुए डपटा। बाबा, उसने मुंह बसूरते हुए ज़िया साहब की तरफ शिकायती नज़रों से देखा। नेक बख्त, क्यों सुबह सुबह मेरी बेटी पर गुस्सा कर रही हो? ज़िया साहब ने हमेशा की तरह उसकी हिमायत की। नुमान साहब, जेड की मौजूदगी में मदीहा ने अपने मजाजी खुदा को सिर्फ घूरने पर इत्तफा किया। माँ जानी, मेरे लिए भी चाय ले आई आती। माँ हम अपना नाश्ता लाकर बैठी तो वो लगावट से बोली। वो खामोशी से अपना कप उसके आगे रखकर खुद के लिए दूसरा कप लाने उठी। कभी अपने आप को भी जहमत दे दिया करे, ससुराल में बाबा आपके साथ मुलाजमों की फ़ौज नहीं भिजवाएंगे। अली भाई ने आदत से मजबूर टांग अड़ाई। मैं ऐसे बंदे से शादी करूंगी जिसके आगे पीछे मुलाजमों की एक कतार होगी, जूते पॉलिश करने से लेकर खाना सर्व करने तक और नाक पूंछने से लेकर मुंह धुलवाने तक। अली ने लुकमा दिया। ऐसे ही सड़ सड़ के मरना तुम लोग। अली को कीना जोर नज़रों से घूरती किन अखियों से उसके बाएं तरफ बैठे खुरम को देखा, जो चेहरे पर दुनिया भर की बेनियाजी सजाए नाश्ते से इंसाफ कर रहा था। भाई द वे सिस्टर, आपको ये मिस्टर लैंडलॉर्ड मिलेगा कहाँ? मुझे तो हमारे दूरों नज़दीक किसी भी रिश्तेदार के घर झाड़ू लगाने वाली मासी तक नज़र नहीं आती। अली ने मुतजस्सिस होते कदरे झुककर राजदारी से पूछा। इरादे पुख्ता हों तो मंजिलें खुद आ मिलती हैं। उसका शहानापन दीदनी था। यह शर्त ये कि मंजिल हिस्से बसारत से महरूम हो। अली की ज़बान में फिर खुजली हुई थी। अलीना का जी चाहा गर्म चाय की कतेली उसके सर पर अंडेल दे। खुरम उन्हें संजीदा तासुरात के साथ बाइक की चाबी उठाता हुआ चल दिया। तुम कहाँ चल दी? माही को उठते देखकर वो मतवज्जो हुई। कॉलेज और कहाँ? माहम का अंदाज लट मार था। रुको, मैंने भी जाना है। जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लगी। लगता तो नहीं, वो तंजन कहती उसे हक्का बक्का छोड़कर किताबें उठाती चली गई। कहाँ खुशामदे करती माहम और कहाँ ये खुशको खुरदरा अंदाज, उसे हज़म करना मुश्किल हो रहा था। फिर अगर माहम ने उसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी तो उसने भी ताल्लुक़ की कोई परवाह नहीं की थी। वैसे भी अच्छी शक्ल सूरत, चुलबुली हरकत और बातूनी आदत की बिना पर कॉलेज में वो सबकी दिल अजीज़ थी। आज तो माहम को तपाने के लिए वो कसदन ऊंचे ऊंचे कह के लगाती रही। घर आकर भी दोनों के माबैन भूलचाल बंद थी। रात खाने के बाद हस्बे मामूल वो छत पर वॉक कर रही थी। तभी माहम को ऊपर आते देखकर वो उसे नज़रअंदाज करती नीचे जाने लगी, मगर माहम ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। वो पलट कर बेतासुर सी नज़रों से उसे देखने लगी। बात करनी है तुमसे। माहम का अंदाज संजीदा था, शायद खफा भी। कहो, सुन रही हूँ। सीने पर बाजू लपेटते हुए तीखी नज़रों से उसे देखा। खुरम भाई में ऐसी क्या कमी है आलिया जो तुमने अब्बू का मान नहीं रखा? भला आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये सवाल अगर तुम मुझसे मेरी दोस्त होने की हैसियत से पूछती हो तो मैं ज़रूर जवाब देती, लेकिन ये बात तुम खुरम की बहन होने के नाते पूछ रही हो। अब मैं कुछ कहूँगी तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए रहने दो। उसने बिना लगी लिपटी रखे साफ गोई का मुजाहरा किया। तुम सिर्फ मेरी कज़न नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी हो, और ये सवाल तुमसे इसीलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे इस कदर बेमुरवती की तवक्को नहीं कर रही थी। उसके शिकायती लहजे में रंज था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें बाबा, ताया, अब्बू को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती। उसे माहम का अंदाज अच्छा नहीं लगा था। तभी नागवारी से कहा, खुदा न ख्वास्ता खुरम भाई में क्या बुराई है? माहम को बुरा लगा था। कम अज़ कम मेरे मामले में तो वो कभी भी अच्छा नहीं रहा। हर बात में मेरी मुखालफत की है, बल्कि सबको मेरे ख़िलाफ़ किया है। मेरी हर चीज़ पर उसको एतराज़ रहता है, इसलिए मेरे सामने तो उसकी अच्छाई के गुण ना ही गाओ तो अच्छा है। वो बेलिहाजी की हद तक साफ गो थी, जिसका अंदाज़ा आज माहम को हो रहा था। अलीना, तुम भाई के लिए दिल में कितना बुग़्ज़ पाले बैठी हो, कितनी कीना परवर हो। भाई अगर तुम्हें किसी चीज़ से रोकते हैं तो तुम्हारे भले के लिए करते हैं, अपना जानकर तुम पर गुस्सा करते हैं। तुम ना जाने क्या समझ बैठी हो। नहीं ज़रूरत मुझे ऐसे अपनेपन की यार, मुझसे मेरी आज़ादी छीन ले। सॉरी टू से, बट खुरम को मैं एज अ कज़न हज़म नहीं कर पाती। इससे आगे सोचना दरकनार। वो कोफत से बोली, लहजे में हद दर्जा बेगानगी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? खुरम की भारी आवाज़ पर उन दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। अब्बू ने मुझसे पूछे बगैर चाचा जान से बात कर ली थी, वरना मेरा जवाब भी वही होता जो तुम्हारा है। अपनी सुलगती हुई आंखें अलीना के फक होते चेहरे पर गाड़ी। अलीना ज़िंदगी में पहली बार उसके सामने घबराई।
और तुम जारहाना अंदाज में माहम की जानिब रुख मोड़ा। तुम इस घुमंडी और बद दिमाग के साथ क्यों फजूल की बहस में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। माहम की अच्छे से क्लास लेकर थप थप सीढ़ियाँ उतरता वो वापस चला गया। कब की रुकी हुई सांस बहाल करते माहम ने दर्जीदा नज़रों से अलीना की तरफ देखा। वो पहले ही गजबनाक तेवरों से उसे घूर रही थी। माहम ने सटपटाकर नज़रों का जाविया बदला। और करो हमायत अपने गवार भाई की, अलीना ने कुसलते हुए। 2-3 मुक्के उसे जड़े और जलती भुनती बुड़बड़ाती नीचे चली गई। माहम इस मुफ्त की बेइज्जती पर बाजू सुलाती रह गई। कमरे में आकर भी खुरम का तहकीर अमेज़ अंदाज उसे सुलगा रहा था। उनके दरमियान ख्वाह कितने ही झगड़े रहे हों, लेकिन खुरम ने कभी इतनी बदलिहाजी नहीं दिखाई। खुरम के साथ उसकी कभी नहीं बनी। खुरम कमगो पढ़ाकू अपने आप में मगन रहने वाला बंदा था, और वो सदा की बातूनी नित नए फैशन के दिलदादा ऊंचे ऊंचे कह के लगाने की शौकीन अपनी चुलबुली हरकतों के बायस वो अक्सर खुरम की डपट और तनबीही घुरियों की जद में रहती, मगर उसने ज़्यादा परवाह न की थी। उनके माबैन सर जंग का आगाज़ तब हुआ जब उसकी क्लास फेलो के तवज्जुह से उसे किसी निजी चैनल से जॉब की ऑफ़र हुई। ताया अब्बू और बाबा को वो तकरीबन कन्विंस कर चुकी थी, मगर ऐन वक्त पर खुरम ने रंग में भंग डाल दी। ये कहकर कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं। उसके दोस्त की बहन इसी बिना पर रिज़ाइन दे चुकी है। बाबा के बदलते तासुरात देखकर वो दो बदो मैदान में उतरी, पर खुरम का पलड़ा भारी रहा, और वो भी रकीबाना अज़ाइम के साथ उसे घूरती रही गई। अभी जॉब वाली बात पे धूल पड़ी थी कि अपने फ्रेंड्स की देखा देखी उसने भी टिकटॉक अकाउंट बनाया और घर वालों से छुपकर अपनी वीडियोस डालने लगी। जाज़्बे नज़र नकुश और नटखट अदाओं के सबब जल्द ही लाइक्स आना भी शुरू हो गए थे। अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने और ख़ुद को मज़ीद पुरकशिश दिखाने के लिए बालों को डाई करवाकर लेयर हेयर कट करवाया, और इसकी ये कोशिश खासी कामयाब भी रही थी। अब तो फैंस की तरफ से रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी कि वो अपना पूरा फेस दिखाए, मगर घर वालों के डर से उसने कभी अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया। उस रोज़ वो सब ख़ानदान की किसी शादी में शिरकत करने जा रहे थे। अलीना सबसे पहले तैयार होकर बाहर आई। अभी कोई भी तैयार ना था। वो जल्दी से अपनी रिंग लाइट उठाकर बाहर लॉन में लाई और फ़ोन सेट करके कैमरा ऑन किया और रिंग लाइट की तरफ पुश्त करके अपने लेयर कट बालों को लहराने लगी। अब अगले स्टेप पर उसे झटके से मुड़कर कैमरे में देखना था। दाएं हाथ पर फैलाए दुपट्टे को हवा में लहराती अदा से मुड़ी तो आंखें कैमरे की जगह खुरम की सर नज़रों से टकराई। अपना फ़ोन उसके हाथ में देखकर उसका की रंगत फक होने लगी। फ़ोन दो मेरा। घबराहट पर काबू पाती ढिठाई का मुजाहरा किया ताकि ख़ानदान का नाम मज़ीद रोशन कर सको। खुरम के माथे के बल मज़ीद गहरे हुए, सर लहजे में फुनकार थी। देखो, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। खुदा न ख्वास्ता मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही। तुम खामखा बात को बढ़ावा मत दो। अलीना के बस में ना था कि कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाती, मोबाइल उसके हाथ से उसके पास आ जाता। रियली? तुम्हें वाकई अपनी लिमिट्स पता है? उसके अल्फाजो अंदाज दोनों ही आग लगाने वाले थे। देखो खुरम, तुम फजूल में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फ़ोन दो मेरा। सारी मसलहत अमेज़ी को एक तरफ रखते हुए वो अपना फ़ोन लेने के लिए बढ़ी। उसी असना में सब घर वाले बाहर आने लगे। वाइट कॉटन के कड़कड़ाते कुर्ते में लंबे से खुरम के पहलू में खड़ी बामुश्किल उसके कंधे तक पहुंच पाती पीच कलर के स्टाइलिश से कपड़ों में सजी धजी अलीना को देखकर नुमान साहब ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में एक फ़ैसला किया। चाहिए, मोबाइल दो। खुरम ने अपनी तरफ आते ताया और अब्बा की सिमत इशारा करते सवालिया अंदाज में अब्रू उठाया। लहजा धमकी अमेज था। वो धीमी पड़ गया और वो उसका फ़ोन अपनी पॉकेट में डालता हुआ आगे बढ़ गया। अगले रोज़ खुरम ने उसे फ़ोन वापस कर दिया। वो बेताबी से चेक करने लगी, मगर वो कमीना ना सिर्फ उसके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवा चुका बल्कि आइंदा के लिए धमकी अमेज तनबीह भी कर गया था। और वो रौंखनी सी उसे कोसती और बद्दुआएं देती रही। अभी ये ज़ख्म मदमिल नहीं हुआ था कि ताया अब्बू ने दोनों की शादी का शोशा छोड़ दिया। वो तो पहले ही खार खाए बैठी थी। उसकी शक्ल देखने तक की रवादार ना थी। यहाँ उम्र भर की कैद का तोक उसके गले में डालने के मंसूबे बन रहे थे जो उसे कतई कबूल ना था। उसके इनकार से बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो या ना पड़ा हो, मगर ताई अम्मी का बिगड़ा मूड कदरे सवर गया था। पिछले कुछ हफ्तों से उसे देखकर जो उनके माथे पर शिकने नमूदार होती, अब वो गायब हो गई थी। बल्कि कभी कभी तो वो उससे प्यार भी जताती नज़र आती, और क्यों ना जताती। उनके लिए तो वही मिसाल थी। हल्दी लगी न फटकड़ी, रंग भी चोखा आया, उन पर बात भी ना आई, और भतीजी की राहें भी हमवार हो गई। इतनी मोहब्बत की तो फिर वो मुस्तहिक ठहरी थी। अगले दिन माहम से नाराज़गी की बिना पर वो अकेली ही कॉलेज आ गई, और वापसी में भी वो उसकी पुकार को नज़रअंदाज करती निकल आई। रास्ते में ऑटो ख़राब होने की वजह से उसे बीच रास्ते में उतरना पड़ा। जून की पिघला देने वाली गर्मी, ऊपर से सर पे तन के खड़ा सूरज। बीच सड़क पर ऑटो के इंतज़ार में खड़ी वो सख्त बेजारू चिड़चिड़ी हो रही थी। तभी कोई स्याह चमचमाती कार उसके सामने आ रुकी। सूरज की तेज़ छुआओं से बचने के लिए हाथ में पकड़ी रजिस्टर का
छाता सा बना के आंखें छोटी करके गाड़ी के नीचे होते शीशे को देखने लगी और पिछली सीट पर बैठे शख्स को देखकर उसकी सारी कोफत और बेजारी दूर हो गई। शहबाज अंकल आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। उन्होंने उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराती हुई अपनी अज़ली एतमाद के साथ गाड़ी में बैठ गई। आप यहाँ किस सिलसिले में आई थी? अंकल नरमी से इस्तफसार करने लगे। मैं कॉलेज से घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ऑटो ख़राब हो गया तो मजबूरन यहाँ उतरना पड़ा। वो तपी सी हुई बताने लगी। ये मेरा बेटा है उस्मान, हायर स्टडीज़ के लिए लंदन गया था, अभी कुछ हफ्तों पहले आया। अंकल के तारुफी अंदाज पर उसने चौंकते हुए आगे देखा। अपनी बेध्यानी में उसे मालूम नहीं हुआ था कि अगली सीट पर ड्राइवर के अलावा भी कोई मौजूद है। उसके देखने पर आगे बैठा खुशशक्ल सा नौजवान मिरर में उसे देखता बेतकल्फ़ी से मुस्कुराया। उसने बेतासुर अंदाज में नज़रों का ज़ाविया बदला। अंकल उसे घर के आगे ड्रॉप करके चले गए और वो उड़ती धूल के पार दूर होती गाड़ी के ओझल होने तक देखती रही। शहबाज अंकल उसके बाबा के दोस्त थे और बकौल ज़िया साहब के दोनों क्लास फेलोज़ रह चुके थे, मगर अपनी मेहनत और किस्मत की बदौलत आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। वह अजहद मुतासिर हुई थी उनकी शान और शौकत से। चंद दिन बाद शहबाज अंकल अपनी कदरे फरबिया और नाजुक मिजाज बेगम के हमरा आए और उनके आने का मुद्दा जानकर वो हैरान हुई। क्या मतलब मामा? वो जैसे बेयकीन थी। तुम मतलब को छोड़ो और ढंग से दुपट्टा ओढ़कर चाय लेकर आओ, मदिहा उसे ताकीद करती चली गई। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुतहिर से सोचने लगी। क्यों नहीं हो सकता? आखिर मुझ में किस चीज़ की कमी है? सामने लगे आईने में अपने सरापे पर नज़र पड़ी तो मगरूरी से सोचते हुए बेयकीन कैफियत को झटका और फिर जैसे झटपट सब तय हुआ। अंकल आंटी अगले इतवार को मंगनी की रस्म अदा करने का ऐलान करके चले गए। वो गोया हवाओं में उड़ती जा रही थी। लुक की बात की जाती तो देखने में उस्मान आम सा गंधमी रंग, मैडम आंखें और मोटे नकूश, मगर उसके नाम के आगे डिग्रियों की कतार और दौलत की रेल पेल ने उसे पुरकशिश बना दिया था। रात खाने के बाद हस्बे आदत वो छत पर आकर वॉक करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर अनजाना होने के बावजूद उसकी छठी हिस्स उस्मान की तरफ इशारा दे रही थी। उसने गला साफ करते हुए फ़ोन ओके किया। हेलो। बाहरी सी मर्दाना आवाज़ सुनकर उसे 100% यकीन हुआ कि वो उस्मान ही है। जी कौन? उसने ज़रा बनने की अदाकारी की। तुम्हारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दूसरी जानिब वो पुरएतमाद था। मौसूफ को तो शदीद खुश फहमी का मर्ज़ लाहक है। अलीना भी अपने मखसूस टोन में बोली। इसे खुश फहमी नहीं, खुद शनासी कहते हैं। मुतकब्बराना लहजा अलीना को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मंगनी की डेट क्या फ़ाइनल हुई? वो जैसे उसकी चुप से उकताया था। पहले ये तो कंफर्म कर दे, हाँ हुई है भी या नहीं। वो उसे चिढ़ाने की गर्ज से शरारत से बोली। इनकार का तो सवाल ही नहीं बनता। खुद पसंदी की इंतहा थी। अलीना जी भर कर बदमज़ा हुई। अच्छा, आपके सर्कल में तो बहुत सी लड़कियां होंगी, फिर मुझसे शादी करने की कोई ख़ास वजह? बातों के दौरान अपने अखरोटी रंग में रंगे बालों में नज़ाकत से हाथ फेरती ठिठुलाकर पूछने लगी। डैड को तुम्हारी फैमिली पसंद थी, काफ़ी पहले कह रखा था मुझसे उन्होंने। फिर उस दिन तुमसे इत्तफाकिया मुलाकात हुई, मुझे भी तुम ठीक ही लगी, सो रिज़ल्ट आज तुम्हारे सामने है। वो जो उसके मुंह से कोई बहुत ख़ास जुमला सुनने की मुंतज़िर थी, इस कदर फीकी तारीफ़ पर दिल सख्त मकदूर हुआ। बुझे दिल के साथ फ़ोन काट कर वो बेजारिया से शानों पर बिखरे बालों को दोनों हाथों से समेटती हेयर बैंड में बंद करने लगी। तभी फ़ोन की आवाज़ पर चौंकते हुए नीम अंधेरे में पड़ी चारपाई की तरफ देखा। खुरम को देखकर उसकी सांस रुकने लगी। वो चारपाई पर बगैर तकिए के सीधा लेटा हुआ था। फिर उसी पोजीशन में उसने फ़ोन ओके करके कान से लगाया। शायद नहीं, यकीनन वो उसकी भी तमाम बातें सुन चुका था। अगर वो नीचे जाकर बड़ों को बता देता तो? अलीना के हाथ पैरों में सनसनाहट सी होने लगी। वो सेलफोन कान से लगाए धीमी आवाज़ में किसी से बातें करता उठकर बैठा और चंद सेकंड बाद फ़ोन बंद करके पॉकेट में डालकर उठा। अलीना खाइफ सी नज़रों से उसे देखने लगी, मगर वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता हुआ उसके पास से गुजरता नीचे चला गया। अलीना ने लंबी सी सांस लेकर कब की रोकी सांस बहाल की। तन्हा कहीं मिलो तो बयान आरजू करें, अब इतनी भीड़ भाड़ में हम क्या गुफ्तगू करें। उस्मान की बेताबियाँ अरूज पर थी। उसकी तरफ झुके वो मुसलसल जुमानी सरगोशियाँ किए जा रहा था। लीना की तो आज छवि निराली थी। पीच कलर की सिल्वर कामदार मैक्सी में वो खूब लश्कारे मार रही थी। उसके पहलू में बैठा ब्लैक पैंट कोट में उस्मान अपनी तमाम तर तैयारी के बावजूद उसके आगे दबा सा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी खुश थी। गो के उनके ख़ानदान में अंगूठी पहनाने की रस्म लड़के की माँ खुद सर अंजाम देती, मगर शहबाज अंकल के इसरार पर
بابا اور تایا ابو کو اپنی روایت سے ہٹ کر اجازت دینی پڑی، تبھی وہ چوڑا ہوا بیٹھا مسلسل سرگوشیاں کیے جا رہا تھا۔ ہاتھ اس نے انگوٹھی پہنانے کے بعد بھی بدستور تھامے رکھا تھا۔ باری باری سب آ کر دونوں کا منہ میٹھا کرنے لگے۔ ماہم بھی مسکراتی ہوئی اسے مٹھائی کھلانے لگی۔ اس نے ابھی غور کیا تھا، وہ عام دنوں سے ہٹ کر بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن وہ اتنی خوش نہیں لگ رہی تھی جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت اوپری سی تھی۔ علینا ناقدانہ نظروں سے اسے دیکھتی لب بھینچ گئی۔ چہرے کے تاثرات میں لاتلکی بھری خفگی سمٹ آئی۔ اس کے انداز کی سرد مہری کو محسوس کرتی ماہم خفیف سا ہو کر مصنوعی سا مسکراتی واپس مڑی۔ اس کا تعاقب کرتی علینا کی کھوجتی نظریں خرم سے ٹکرائی۔ بلیک شلوار سوٹ میں آستین نے کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ خاصا مصروف دکھائی دیا۔ اپنے بیچ موجود انات سے ہٹ کر وہ دیکھتی تو خرم نے واقعی گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے فرض کو بخوبی نبھایا تھا۔ ڈیکوریشن سے لے کر کیٹرنگ تک کی تمام ذمہ داری اس نے سنبھالی تھی۔ اس کا جائزہ لیتے وہ خواہ ہی مرعوب ہونے لگی، اور یہ اس کی نگاہوں کا تسلسل ہی تھا جو خرم کو چونکانے کا باعث بنا۔ پہلے چونکا، ٹھٹکا، پھر سرسری سی نگاہ ڈالی۔ وہ اپنی طرف ٹکٹکی باندھے تکتی ملی۔ نظروں کے اس تصادم پر وہ کچھ اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی کہ عثمان کے ہاتھ میں دبا ہاتھ بے ساختہ سرت سے کھینچا۔ عثمان کو اس کی یہ حرکت شدید ناگوار گزری تھی، تبھی چہرے پر تلخی بھر کر خفگی در آئی۔ میرے سامنے یہ ٹپیکل دلہنوں والا ایٹیٹیوڈ مت شو کرو پلیز، بنا کسی رعایت کے رخائی سے کہا۔ سوری، وہ کسیانی سی ہوئی منمنائی، مگر عثمان کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ پھر اگلے 2 دن تک مسلسل علینا سے معافی نامے بھرے میسیجز موصول ہوئے۔ جانے کے بعد کہیں جا کر عثمان کا موڈ بحال ہوا۔ آئندہ ہاتھ جھٹکنے سے پہلے سوچنا ضرور۔ یو نو واٹ، لڑکیاں ترستی ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ وہاں لندن میں بھی میری کتنی کلاس فیلوز فری ہونے کی کوشش کرتی۔ یہ مت سمجھنا میں نے کوئی حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ گویا احسان عظیم جتا رہا تھا۔ علینا کی خود پسندانہ انا کو ٹھیس پہنچی تھی، پر مصلحت کا پرچم بلند رکھا۔ کل رات 9 بجے کے FC میں تمہارا ویٹ کروں گا۔ تم نے بلیک ڈریس پہن کے آنا ہے۔ معافی نامہ قبول کر لینے کے بعد نیا جاری شدہ آرڈر علینا کا دماغ چکرانے کے لیے کافی تھا۔ میں کوشش کروں گی، بٹ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں۔ وہ بہت سنبھل کر بول رہی تھی، ساری تیز تراری ہو گئی تھی۔ تمہارے لیے یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہماری شادی ہونے والی ہے اور اتنا حق بنتا ہے میرا تم پر۔ کل تم نے آنا ہے، دیٹس اٹ۔ عثمان نے رابطہ منقطع کر کے گویا انکار کی راہیں مسدود کی، اور اپنی کم علمی کی بنا پر وہ اتنا بھی نہ کہہ پائی کہ فقط انگوٹھی پہن لینے سے کون سے حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی ستائشی نظروں سے اپنا سر تپا جائزہ لے رہی تھی۔ بلیک گاؤن سٹائل کی، پیروں کو چھوتی میکسی میں اس کی چمپئی رنگت کچھ اور نمایاں ہو رہی تھی۔ مغرورانہ تاثر دیتی بھنوری آنکھوں کو آئی لائنر کی موٹی لکیر نے مزید غرور بخش دیا تھا۔ کھلتے گالوں کو بلش آن کی ہلکے سے ٹچ نے دہکا ڈالا تھا۔ چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو نرمی سے سمیٹ کر پیچھے نازک سے کلپ کی مدد سے سمیٹا، جس کے اوپر سرخ رنگ کا کھلتا ہوا گلاب بنا ہوا تھا۔ بھرے بھرے کٹاؤ دار لبوں پر ریڈ لپسٹک کی گہری تہ نے 2 آتشہ بنا دیا تھا۔ کل رات سے عثمان کی فرمائش نے اس کی جان گویا آزمائش میں ڈال رکھی تھی۔ دن کی بات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے گھر سے نکل آتی، مگر شام کے بعد ان کا گھر سے نکلنا الاؤ نہیں تھا۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے رات بھر وہ سو نہ سکی۔ وہ تو بھلا ہو اس کی کلاس میٹ زارا کا، جس نے شام کو ہونے والی اپنی برتھ ڈے پارٹی پر اسے انوائٹ کر کے اس کی مشکل آسان کر دی۔ انویٹیشن تو ماہم کو بھی ملی تھی، مگر اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مگر ماہم کی جان پہچان کا اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ خود اسے بآسانی اجازت مل گئی جانے کی۔ بلیک اسٹرپ کی نازک ہیل میں سہج سہج کر قدم رکھتی نزاکت سے چلتی ہوئی لاؤنج تک آئی۔ موم میں چلوں؟ لہجے میں دنیا جہان کی تابعداری سمو کے معصومیت سے اجازت طلب کی۔ یہ اتنا زیادہ تیار ہو کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کی کیا تو کہہ بھلا؟ فریہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے گھر کا۔ میں برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہوں، خدا نہ خواستہ کسی فاتحہ خوانی میں نہیں جو منہ سر لپیٹے چلی جاؤں۔ زیادہ دیر وہ بھی تابعداری کا کردار نہ نبھا سکی، زبان کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ اچھا میں جا رہی ہوں، بائے۔ اس سے قبل کہ ماما مزید اس کا موڈ آف کرتی، وہ بد مزہ سے کہتی آگے بڑھی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اکیلی جا رہی ہوں۔ اور کون ساتھ جائے گا بھلا؟ وہ سخت جلائی۔ گھر میں کیا لڑکے نہیں جو تم یوں 16 سنگھار کیے موٹا رکشہ ٹیکسی میں غیر مردوں کے ساتھ جاؤ گی؟ میں خرم سے کہتی ہوں وہ چھوڑ آئے گا تمہیں۔ ہاں خرم تو جیسے بڑا محرم ہے نا میرا۔ وہ جلتی کلپتی بے بسی سے بڑبڑاتی ہوئی مخملی صوفے میں دھس گئی۔ کچھ دیر بعد فریہ خرم کے ہمراہ واپس آئے۔ علینا نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر منہ دوسری طرف موڑا۔ اٹھ جاؤ علینا، خرم نے ویسے بھی اسی طرف ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، تمہیں بھی چھوڑ آئے گا۔ فریہ کا انداز پچکارتا ہوا تھا، وہ ہنوز منہ سجائے ٹھسی بیٹھی رہی۔ اگر چلنے کا ارادہ تو اٹھو، ورنہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ زیادہ دیر اس کی ادائیں برداشت نہ کر سکا۔ تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ علینا نے بھی
اپنا سابقہ ریکارڈ بحال رکھا۔ میں اپنے بڑوں کا بہت احترام کرتا ہوں اور اسی احترام کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلا آیا، ورنہ مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں تم جیسی بدتمیز کو ساتھ لے جانے میں۔ اگر جانا ہو تو گاڑی سٹارٹ ہونے تک باہر آ جانا، وگرنہ انتظار کرنا میری سرشت میں شامل نہیں۔ ہتک امیز ٹھنڈے لہجے کی سر تپشوں سے سر تھا پا تذلیل کے احساس سے سلگا گئی، مگر دل میں اٹھتے باغیانہ خیالات کو تھپکاتے دماغ کی سجائی روش کو ترغیب دی۔ اگر خرم چلا جاتا تو دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، تو حالت مرگ میں مردار بھی حلال والے مقولے پر عمل کرتی وہ باہر آ گئی۔ خرم گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، وہ بھی انا پر پیر رکھتی فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھی، مگر گاڑی کا دروازہ زوردار آواز میں بند کرنا نہیں بھولی۔ اس کے بیٹھتے ہی خرم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ علینا نے تیکھی نظروں سے اس پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ وہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا، مگر جانے کیوں اسے لگ رہا تھا وہ دل ہی دل میں اس پر ہنس رہا ہے۔ اس نے کلستے ہوئے پہلو بدلا، رخ موڑ کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ یہاں گاڑی روکو۔ اس کے تحکم پر خرم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیوں، یہاں کیا ہے؟ گفٹ سینٹر۔ واٹ؟ اب تم یہاں اتر کر گفٹ خریدو گی؟ خرم کا پارا چڑھنے لگا۔ آف کورس، انداز تاؤ دلانے والا تھا۔ صبح سے کیا کر رہی تھی تم؟ کچھ خاص نہیں، لیکن سوچا تھا جاتے ہوئے راستے میں لے لوں گی۔ خرم کو تپا ہوا دیکھ کر وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی، تبھی اٹھلاہٹ سے بولی، ہر فضول کام تمہیں میرے سامنے ہی کیوں یاد آ جاتا ہے؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لو بھلا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے لے جانے کا اعزاز تمہارے حصے میں آئے گا؟ علینا کی اداکاری عروج پر تھی۔ اچھا بس بتاؤ کیا چاہیے، میں جا کر لے آتا ہوں۔ خرم نے جیسے ضد ہوتے ہوئے ٹوکا۔ نو تھینکس، پیر سلامت ہے میرے، میں خود جا سکتی ہوں۔ علینا کا وہی انداز تھا، طنزیہ نخوت بھرا، بدتمیز۔ ٹھیک ہے، لیکن دوپٹہ سر پر لے کر باہر آنا۔ لاحاصل بحث سے بچنے کے لیے خرم نے جیسے مفاہمت اختیار کی، مگر آخر میں تاکیدی انداز علینا کو خاکستر کر گیا۔ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی نزاکت سے دوپٹے کا پہلو سر پر جمایا، مبادا اتنے محنت سے بنائے ہیئر سٹائل کا ستیہ ناش نہ ہو جائے۔ اسے دوپٹہ سر پر لیتا دیکھ کر خرم مطمئن ہوتا ڈور کھول کر نیچے اترا۔ علینا بھی گاڑی سے اتر کر اس کی تقلید کرتی نپے تلے قدم اٹھانے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ پینسل ہیل پیروں کو چھوتا گاؤن اور سر سے پھسلتے دوپٹے کے ساتھ وہ خاصا انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ گفٹ سینٹر کے اندر چاروں طرف شو کیس میں اس قدر خوبصورت گفٹس رکھے تھے کہ اسے انتخاب کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ زارا کی پسند ناپسند سے ناواقف ہونے کے سبب بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے پرفیوم لینے کا فیصلہ کیا، تبھی گلا خنخارتے شاپ اونر کو مخاطب کیا، بھیا جی ذرا رومانس دکھائیے، میرا مطلب پرفیوم، رومانس پرفیوم۔ جتنی تیزی سے اس کی زبان پھسلی تھی اتنی ہی تیزی سے خرم کی خشمگی نظروں کی تپش نے اسے اپنے بے پن کا احساس دلایا۔ مگر سیانوں نے صحیح کہا ہے کہ کمان سے نکلا تیر اور منہ سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ کچھ ایسی ہی حالت اس کی بھی ہوئی تھی جب 25 سے 30 کے درمیان خوش شکل سے نوجوان نے پرفیوم کا باکس اس کے سامنے رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ لیجیے آپ کا رومانس۔ لبوں پر موجود دبی دبی سی مسکراہٹ نئے سرے سے شرمندگی کے سمندر میں غوطہ زن کر گئی۔ بدتمیز کمینہ، پرفیوم کا باکس بغیر کھول کر دیکھے پرس میں اڑستی سرخ چہرے کے ساتھ قدرے اونچی آواز میں بڑبڑائی، پرس سے پیسے نکال کر رونت سے کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ میڈم پیسے واپس رکھ لیے، بل سر نے پے کر دیا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ نوجوان کا دماغ درست کر چکی تھی، تبھی شرافت کے جامے میں بڑے مہذب انداز میں گویا ہوا۔ اس کے سر کہنے پر اول تو وہ چونکی، پھر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ خرم شاپ سے نکل رہا تھا، اس نے ماتھے پر بل ڈالے، دوبارہ ایک کٹیلی سی نگاہ نوجوان پر ڈالی اور نخوت سے پیسے اٹھا کر خرم کے پیچھے لپکی۔ کچھ دیر پہلے والی شرمندگی کا اثر زائل ہو چکا تھا، بلکہ اب نئے سرے سے وہ اس سے الجھنے پر کمر بستہ نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ خرم سے 2 سیڑھی اوپر تھی جب کوئی بڑے زور سے اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتا ہوا تیزی سے آگے نکلا، اور وہ اس اچانک لگنے والے جھٹکے سے بے توازن ہو کر نیچے سیڑھیوں پر لڑک پڑتی، اگر جو بروقت خرم کا چوڑا شانہ نہ تھام لیتی۔ خرم نے سرعت سے اسے تھاما، اس کے سنبھلتے بجلی کی سی رفتار سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اس اوباش حلیے والے لڑکے کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے یکے بعد دیگرے کہیں تھپڑ لگائے۔ سب کچھ اس قدر اچانک اور جلدی ہوا کہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ بس سن سی کھڑی اس لمبے بالوں والے اوباش لڑکے کو خرم کے ہاتھوں پٹتے دیکھتی رہی۔ ہوش تب آیا جب دھیرے دھیرے مجمع اکٹھا ہونے لگا۔ متجسس نگاہیں، دلچسپ منظر، کسی خاص شخص کے لیے سر سے پیر تک سجی وہ کہیں پرتجسس اور دلچسپ نظروں کے حصار میں تھی، کہیں نظریں از خود کہانیاں بننے لگی۔ وہ تیزی سے خرم کی جانب بھاگی، مگر اس پر تو گویا وحشت سوار تھی۔ جب تک وہ اس کو وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہوتی تب تک اس لڑکے کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اسٹاپ اٹ خرم، بس کرو، یہ پاگل پن کیوں؟ لوگوں کے سامنے تماشا لگا رہے ہو؟ بفرے ہوئے خرم کو بازو سے دبوچے گاڑی تک لانے میں ہلکان ہوتی وہ جیسے پھٹ پڑی۔
तमाशा तो तुमने खुद लगाया है, अपना और साथ में मेरा। मना कर रहा था मैं कि मत निकलो बाहर, मगर नहीं, तुम्हें तो अपने हुस्न की नुमाइश मकसूद थी। कर ली हसरत पूरी, हो गया खराज वसूल। वो गोया गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। शट अप खुरम, आगे एक और लफ्ज़ भी मत कहना। तुम इतने नीच और घटिया ज़हनियत के होगे, मैं सोच भी नहीं सकती। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी मेहरबानियाँ। अहानत तो सबकी के एहसास की शिद्दत से उसका चेहरा फट पड़ने की हद तक सुर्ख होने लगा। बुरी आंखें इश्तियाल अंगेज़ी से जल उठी थी। अपनी बात पूरी करके खुरम पर एक हकारत भरी निगाह डाली। वो झटके से मुड़ी, मगर जिस तेज़ी से वो मुड़ी थी उसी सरत खुरम ने उसकी कलाई दबोचकर झटका दिया। गिरफ्त इस कदर सफाको बेदर थी कि बेसाख्ता उसकी कराह निकल गई। चुपचाप करके गाड़ी में बैठो, वगरना बसूरत दीगर अगर ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालना पड़ा तो भी दुरेग नहीं करूँगा। सुर्ख आंखों की गज़बनाकी रूह फना कर देने वाली थी। मुस्तज़ाद लफ्ज़ों के चुनाव का बेतुकापन वो बुरी तरह जज्बुज़ हुई थी। चेहरे का पथरीलापन और लहजे की सख्ती इस कदर शदीद तर थी कि उसके अंदर से उभरते सरकशो बाग़ियाना ख्यालात आप ही सर्द पड़ गए। वो खाइफ सी नज़रें चुराती आहिस्तगी से गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही गोया गाड़ी को पर लग गया। जिस कदर ख़राब उसका मूड था, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब वो ड्राइव कर रहा था। 20 मिनट का रास्ता महज 8 मिनटों में तय करते गाड़ी सीधा ज़ारा के घर के आगे रुकी थी और अलीना की रुकी सांस चल पड़ी। जान बख्शी पर दिल ही दिल में शुक्राने के नवाफिल अदा करने का इरादा बांधती झट गाड़ी से यूं उतरी गोया उम्र भर के कैदी को अचानक रिहाई का परवाना मिल गया हो। उसके नीचे उतरते ही खुरम ने जैसे भक्त से गाड़ी उड़ाई। वो हवास बागता सी बेसाख्ता उछलकर 2 कदम पीछे हटी। उससे क्या बैद ऊपर चढ़ा देता। फिर ज़ारा से मिलकर थोड़ी देर बैठे रहने के बाद वो उसका बर्थडे गिफ्ट उसे थमाकर घर में इमरजेंसी का बहाना करती केक कटने से पहले ही वहाँ से निकल आई। उस्मान के बताए लोकेशन पर वो उसके दिए गए टाइम से पहले ही पहुँच गई, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार की कोफत का सामना उसे नहीं करना पड़ा था। चंद मिनटों बाद ही ब्लैक पैंट कोट में ग्लास डोर धकेलता हुआ वो अंदर आता दिखाई दिया। अलीना को अपना मुंतज़िर पाकर उसका मूड खासा खुशगवार हुआ था। टेबल के करीब पहुँचकर उस्मान ने अपना हाथ उसके आगे फैलाया। अलीना की जैसे महवियत टूटी, चौंकी आंखों में अचंभा लिया, पलकों की बाढ़ उठाई, फिर जैसे उसकी वालहाना नज़रों के तमाम प्याम को समझती आहिस्तगी से अपना नाजुक हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा। उसका हाथ मजबूती से थामे वो अंदरूनी हिस्से की सिम चलने लगा। फिर एक प्राइवेट रूम का मेन डोर खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मध्यम सी जलती बुझती रोशनियों से सजा छोटा सा रूम, जिसकी आराइश पर खसूसी तवज्जो दी गई थी। गोल में इसके वस्त में जलती कैंडल माहौल की रोमानियत में मजीद इजाफे का सबब बन रही थी। अलीना अपने माथे पर फूटते पसीने को महसूस कर रही थी, मगर उस्मान का रवैया उसके बरक्स नॉर्मल था, बल्कि किसी हद तक वही अज़ली अंदाज खुद पसंदाना और खुद सताइशी से भरपूर। रफ्ता रफ्ता उस पर भी तारी माहौल का असर ज़ायल होने लगा। उस्मान की संगत में अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर करने के बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। 11 बजे के करीब अलीना के इसरार पर वो उसे घर से थोड़ा फासले पर ड्रॉप करके गया। वो फ्रेश मूड के साथ हाथ हिलाकर उसे अलविदा करती घर के अंदर दाखिल हुई। महबूब से मुलाकात का नशा भी ताज़ा था, सो मुस्कुराहट लबों से चिपक कर रह गई थी। कहाँ से आ रही हो? अभी तो खुशकुन ख्यालों के खुमार में वो मुकम्मल डूब भी ना सकी कि अपने से 2 कदम के फासले पर नीम अंधेरे में स्याह शलवार सूट में सीने पर हाथ बांधे खुरम को देखकर सारा खुमार भक्त से उड़ा। अगर कहाँ से आ रही हूँ के बजाय वो ये सवाल करता कि किसके साथ आई हो, तो उसका जवाब वो पहले ही सोच आई थी कि ज़ारा के ड्राइवर का नाम ले लेगी। मगर चूँकि सवाल गैर मुतवक्के था, उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगा। मेरी जासूसियाँ करने की घटिया आदत गई नहीं तुम्हारी? वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली मकोले पर अमल करती उस पर चढ़ दौड़ी। एटलीस्ट जब तक तुम इस घर में मौजूद हो, अपनी आदत तर्क कर देने का मतलब है खुद अपने हाथों अपने लिए जिल्लत का गड्ढा खोदना। मुकाबिल भी खुरम था, लम्हों में खाक कर देने के हुनर से आशना खुरम। तुम्हें नहीं लगता तुम बिला वजह अपना वक्त और मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो? सीने पर हाथ बांधे हुए आंखें सुकेड़कर सुलगती नज़रों से उसे देखती वो ठंडे लहजे में बोली, तुम्हारा दिमाग तो पहले ही ख़राब है, अलबत्ता मेरा वक्त ज़रूर बर्बाद हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ, साफ बता दो। अगर नहीं तो अंदर लाउंज में अब्बू और चाचा जान तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठे हैं। उन्हें तो बताना पसंद करोगी ही तुम कि इस वक्त कहाँ से आ रही हो। बदमिजाजी और कड़वेपन में तो उस शख्स का कोई सानी नहीं था, मगर अलीना ने भी पसपाई इख्तियार करने के बजाय डिटाई का मुजाहरा बेहतर समझा। जिस पते पर तुम छोड़ आए थे वहीं से आ रही हूँ। ये नहीं, अकल के साथ यादाश्त भी रुखसत हो गई। खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरते लफ्ज़ों को जैसे चबाया। मगर उसी पते से तुम्हारे लापता होने की खबर भी मिली हमें। अलीना की रंगत यकदम मुतग़य्यर हुई। और मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हें वहाँ से रपोश हुए 3 घंटों से ज़ायद हो चुके हैं। अब आप फरमाना पसंद करेंगी, ऐसी कौन सी अफ्ताद आन पड़ी थी जो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे छोड़कर जाना पड़ा? खुरम का लहजा जितना ठंडा था, नज़रें उतनी ही कारदार थी।
अलीना जैसे बहुत बुरी तरह फंसी थी। अभी वो कोई माकूल सा बहाना सोच ही रही थी कि खटके की आवाज़ पर दोनों ही चौंक कर पीछे देखने लगे। अली मोहतात अंदाज में दरवाज़ा भीड़ता अंदर आया था। ये वक्त है तुम्हारा घर आने का? अब वो अली की क्लास ले रहा था। अलीना मौका गनीमत जानते हुए वहाँ से खिसकी। मेरी तरफ देखकर बात करो अली, मैंने मना किया था ना तुम्हें उन लोगों के साथ उठने बैठने से। लहजे की सख्ती अलीना को कदम रोकने पर मजबूर कर गई। सॉरी भाई। अली का सर झुका हुआ था। क्या सॉरी यार, मेरी किसी बात का असर तो होता नहीं तुम पर। कितना कहा है, छोड़ दो, ये फजूल लोग हैं। सो दोस्तियाँ मगर नहीं कर ली तुमने अपनी ही है। खुरम का लहजा अब कदरे नरम लेकिन नाराज़गी लिए हुआ था। अली हनूज सर झुकाए खड़ा था। खुरम अब उसका शाना थपथपाते हुए मजीद ही कुछ कह रहा था, मगर आवाज़ धीमी होने के बाद उसके पल्ले कुछ न पड़ा। तभी सर झटकती वो अंदर आ गई। लाउंज खाली पड़ा था, सभी अपने कमरों में सोने जा चुके थे। मजीद जवाब तलबी के से जान खुलासी पर वो तशक्कुर का सांस लेती अपने कमरे में आ गई। मामा मुझे पराठे के साथ हाफ फ्राई अंडा, ऊपर काली मिर्च छिड़क दीजिएगा। नाश्ते की टेबल पर सुस्ती से बैठती मंदी मंदी नज़रों से चूल्हे के आगे खड़ी फरिया को देखती लाड से फरमाइश करने लगी, और साथ में थोड़ा जहर भी छिड़क दूं ताकि जान छूटे मेरी तुम जैसी नाफरमान औलाद से। मामा जिस तरह सुबह सुबह ड्रोन हमले की सूरत उस पर हमला आवर हुई, वो उसकी सुस्ती और नींद भगाने में खासा कारआम साबित हुई। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो भोलेपन के रिकॉर्ड तोड़ने लगी। तुमने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है जो तुम्हें ज़ारा के घर जाने की इजाज़त दे दी। शाम की गई, तुम किस वक्त लौटी कुछ एहसास है? भाई साहब ने 9 बजे खुरम को लेने भेजा तो तुमने उसके साथ आने से भी मना कर दिया। दोस्त की नाराज़गी की बड़ी फिक्र है, घर के बड़ों का कोई एहसास नहीं, कोई परवाह नहीं। सुबह सुबह निहार मुँह इस कदर इज्जत अफजाई पर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। और ये एक नवाबजादा जाने किन हवाओं में है। टेस्टों में तो अंडों की बरसात थी ही, पेपरों में भी ऐसे शानदार नंबरों से फेल हुआ है कि बाप का नाम रोशन कर दिया खानदान भर में। फरिया की तोपों का रुख अब अली की जानिब हुआ था। लीना की हंसी छूट गई। माहम भी सर झुकाए हंसी छुपाने में हलकान होती नजर आई। अली, तुमने बताया नहीं कि तुमने ज़िला भर में टॉप किया है। मामा अपने दिल की भड़ास निकालकर किचन में रपोश हुई तो वह शरारती नज़रों से अली की तरफ देखती छेड़ने लगी। अली बदस्तूर सर झुकाए नाश्ता करता रहा। अंदाज अजहद लाताल्लुक और सपाट था। उसके रवैये से चौंकती वो गौर से उसकी तरफ देखने लगी। वो शोखो हाजिर जवाब अली से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। जर्दी घुली रंगत और रूठा रूठा अंदाज। क्या हुआ, कॉलेज नहीं जाना तुमने? माहम ने उसे गुमसुम बैठे देखकर टोका। मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम चली जाओ। बट वाई? माहम ने अब्रू अचकाए। सर में दर्द हो रहा है यार, रेस्ट करूंगी। वो उकताई हुई लग रही थी। माहम लापरवाही से कंधे उचकाती उठकर चली गई। वो सुस्ती से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन लाउंज में खुरम को देखकर रुक गई। वो सीढ़ियों के पास खड़ा दूसरी सीढ़ी पर अपना बायां पैर रख के झुका शूज़ के लेस कस रहा था। वाइट एंड स्काई ब्लू चेकदार शर्ट के साथ ब्लू जीन्स में वो ऑफिस जाने के लिए तैयार लग रहा था। वो उसके करीब आकर हल्का सा खनखारी। खुरम उसके आने का कोई नोटिस लिए बगैर अपने शूज़ के लेसिस कसने के बाद अब सीधा खड़ा रेस्ट वॉच बांध रहा था। बात करनी है मैंने तुमसे। खिलाफ मामूल उसका लहजा कदरे धीमा था। जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। खुरम का वही अंदाज था, संजीदा और दो टोक। कल रात तुम अली को डांट रहे थे और आज मामा भी परेशान लग रही हैं, और अली के अतवार देखकर अब मुझे भी टेंशन होने लगी है। खुदा न खास्ता वो बुरी सोबत, ऐसा कुछ भी नहीं। खुरम उसकी बात काटता हुआ कतियत से बोला। कल मुझे भी उसके रिजल्ट कार्ड का गुस्सा था, तभी उसे डांट लिया। बाकी कोई इशू नहीं, अगर हुआ भी तो मैं हैंडल कर लूँगा, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता तुम्हारी तरफ से मुझे अब दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उसका लहजा संजीदा लहजा आखिर में तनबीही हुआ। उसकी आखिरी बात पर वो नादिम से नज़र आने लगी। सॉरी। सर झुकाया। उस वक्त वो मजलूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। मैं आइंदा ख्याल रखना, इस बार तुम्हारी गलती की पर्दापोशी कर ली। इस खुशगुमानी को दिल से निकाल दो। दोबारा ऐसी दरिया दिली का इरादा हरगिज़ नहीं मेरा। बेहतर होगा तुम खुद अपनी हदूद का तयन कर लो और उस्मान साहब को भी समझा दो, ये लंदन नहीं पाकिस्तान है। संजीदगी से बात करते आखिर में उसका लहजा वैसा होने लगा जो उसके लिए मखसूस था, सर्द और कतियत भरा, सड़ियल खड़ूस। अपनी बात मुकम्मल करके वो जाने लगा तो अलीना उसकी पुश्त को घूरते दांत पीसती बड़बड़ाने लगी। कमरे में आई तो उसका मोबाइल बज रहा था, लेकिन जब तक वो करीब पहुंची फ़ोन बंद हो चुका था। उसने फ़ोन चेक किया, उस्मान मिस कॉल्स लिखा नज़र आया। अलीना का इस वक्त किसी से बात करने को कतई दिल नहीं चाह रहा था, मगर 8 मिस कॉल्स देख कर न चाहते हुए भी कॉल बैक करना पड़ा। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? कॉल रिसीव होते साथ ही जिरह करता लहजा उसके समातों से टकराया। फ़ोन रूम में था। सॉरी। आदत के बरखिलाफ़ उसने मुफाहमती अंदाज़ अपनाया। कल रात भी इग्नोर कर गई थी तुम। एक और कड़ा सवाल आया। सॉरी टू से, बट
कल रात आते ही खुरम के साथ तकरार हो गई थी मेरी, जिसकी वजह से मूड ख़राब हो गया था मेरा। इस तो जी देता लहजा खासा उकताया हुआ और जान छुड़ाने वाला था, लेकिन वो था कि जान छोड़ने पर आमादा ना था। खुरम की क्या मजाल जो तुमसे उलझे। तो शीशी अंदाज में तैश भी छलकने लगी। ओफो उस्मान, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली खुरम को तुम्हारे बारे में इल्म हो गया था, इसी बात को लेकर गुस्सा कर रहा था। वो जैसे बुरी तरह ज़िद-चोती वजाहत देने लगी। खुरम को क्या प्रॉब्लम है तुझसे? तुम मेरी होने वाली बीवी, और मैं जहाँ चाहूँ तुम्हें ले जा सकता हूँ। उसका धौंस जमाता अंदाज घुसीला होने लगा। यही प्रॉब्लम है कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, अभी हुई नहीं, और ये पाकिस्तान है उस्मान। यहाँ पर शादी से पहले ऐसे चोंचलों को बुरा समझा जाता है। बिल्कुल बेसाख्ता और अचानक ही उसके मुंह से कुछ देर पहले खुरम के कहे जुमले निकले। व्हाट नॉनसेंस। तुम्हारा भी कहीं अपने घर वालों की तरह दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं भी पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ। अपने आसपास अपने सर्कल में जाने मैंने कितने ही लड़के लड़कियों को देखा है। जस्ट फ्रेंडशिप में वो लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते। हमारी तो फिर इंगेजमेंट हो चुकी है। अजीब बैकवर्ड फैमिली है तुम्हारी। वो बरमला अपने गुस्से, नागवारी और नापसंदीदगी का इजहार कर रहा था, और लाइन की दूसरी जानिब अलीना ख्वामखा ही शर्मिंदा हुए जा रही थी। इस वाक़ये के 6 दिन बाद ही उस्मान के मन में क्या समाई कि अंकल आंटी को शादी की तारीख लेने भेज दिया। अभी उसके फाइनल सेमेस्टर में 2 ही मंथ रहते थे। ऐसे में उनकी हरकत बचकाना सी थी। वो जानती थी घर में से कोई भी राज़ी नहीं होगा, लेकिन मंगनी की तरह यहाँ भी शहबाज अंकल ने धौंसों ज़बरदस्ती से तायाबू और बाबा जान से अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। गो की शादी की डेट सेमेस्टर के बाद की ही रखी गई थी, लेकिन दोनों तरफ तैयारियों का आगाज़ हो गया था। मामा के ताई अम्मी के हमरा आए रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगते। खुद उसको तो सेमेस्टर की वजह से फुर्सत नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन वो काफ़ी कुछ पसंद और ऑर्डर कर चुकी थी। उस रोज़ वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो मामा ने बताया कि आंटी उस्मान की मामा उसे शॉपिंग करवाने आ रही हैं। गो के जिस क्लास से उनका ताल्लुक़ था वहाँ लड़का लड़की खुद ही जाते थे, मगर अलीना के घर वालों की क़दामत परस्ती के पेश नज़र उस्मान को मजबूरन मिसेस शहबाज को इन्वॉल्व करना पड़ा था। यहाँ से आंटी उसे पिक करती और रास्ते में उस्मान के हवाले करके उन्हें NGO चले जाना था, जो कि ये प्रोग्राम कल से तरतीब शुदा था। तभी मामा की इत्तला पर वो दिली जज्बात छुपाती, थकावट तारी करती, उकताहट जाहिर करती, मुंह के जाविये बिगाड़ती उठती। अपने कमरे में आकर भरपूर शावर लेने के बाद उसने मौसम की मुनासबत से लेमन कलर का बिल्कुल सादा सूट पहना, जिसके साथ शिफॉन का हमरंग दुपट्टा था, जिसके ऊपर बड़े बड़े सूरजमुखी के फूल बने थे। मिरर के आगे खड़ी ब्लश ऑन किट हाथ में पकड़े, दूसरे हाथ से बड़ी महारत से ब्रश अपने चेहरे पर फेरती अपनी खिलती रंगत में मज़ीद गुलाबियाँ पैदा करने की कोशिश में जती हुई थी। तभी दरवाज़ा खोलती माहम अंदर आई। ज़रा जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे दूल्हे मियाँ इंतज़ार में बिल्ले हुए जा रहे हैं। क्या मतलब? वो महारत से मस्कारे की कोटिंग करती मिरर में माहम को देखती पूछने लगी। मतलब तुम्हारी सास साहिबा के हमरा होने वाले मजाजी खुदा भी तशरीफ़ का टोकरा लाए हैं, और अब उनसे इंतज़ार करना मुहाल हो रहा है। इसीलिए ज़रा उनके हाल पर रहम करो और जल्दी नीचे आओ। क्या मतलब उस्मान भी आया है? वो मस्कारे का कैप बंद करती पलट कर मुश्कूक नज़रों से उससे देखने लगी। नहीं, उनका भूत साथ आया, माहम बेमुरवती से कहती पलट कर वापस चली गई। उस्मान की आमद और घर वालों के रद्द अमल का सोचकर उसके हाथ पांव फूलने लगे। जल्दी से स्लीपर पैरों में अड़सती वो कमरे से निकली, और उसी अजलत के नतीजे में वो सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़कर ऊपर आते वजूद से बुरी तरह टकराए। सॉरी। फौलादी वजूद के ऊपर फिट चेहरे को देखकर उसने आगे के अल्फाज हलक में उतारे। तासुरात में आप ही आप कड़वाहट से डर आई। नखवत से मुँह फेर कर वो साइड से गुजरती सीढ़ियाँ उतरने लगी। आराम से, तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं है वो। पीछे से खुरम के दिल जलाते जुमले ने उसे सर तपा सुलगा के रख दिया। जब भी मुंह खोलता है नहूसत ही टपकती है। वो दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। ड्राइंग रूम के दरवाजे से उसे उस्मान नज़र आ गया। तभी एक अदा से अंदर दाखिल हुई। आंटी को सलाम करते एक चोर निगाह उस पर डाली। वो खासा उकताया हुआ बैठा था। उसे देखकर भी तासुरात रूखे पीखे ही रहे। वो भी अपने फिसलते हुए दुपट्टे को संभालती वहीं सोफे पर टिक गई। उस्मान जैसे जाने के लिए पर तोल रहा था। वो खुद भी आंटी के उठने की मुंतज़िर थी, लेकिन वो नज़ाकत से चाय के सिप लेती मामा से बातों में मसरूफ़ थी। मामा के बाएं जानिब ताई अम्मी के चेहरे पर नागवारी साफ ज़ाहिर हो रही थी, जिसका मुहर्रक यकीनन उसका यूँ बेबाकी से उस्मान के सामने बैठना था। आंटी अपनी चाय ख़त्म करके उठने लगी थी, तभी अचानक बड़ी ज़ोर से ज़ोरदार दरवाज़ा धड़धड़ाया जाने लगा। अंदाज़ इस कदर जड़ और बदतमीज़ी भरा था कि सभी चौंक कर मतवज्जे हो गए। अलीना घसीले अंदाज में उठी और जाकर जारहाना अंदाज में दरवाज़ा खोला। अली को मोहल्ले के 3 लड़के पकड़े अंदर ला रहे थे। उसकी आंखें बंद थी और गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। अलीना का सारा गुस्सा हवा में तहलील हुआ था। घबराए हुए अंदाज में दरवाजे से हटकर उन लोगों को अंदर आने का रास्ता दिया। तीनों लड़के उसे अंदर ले जाने लगे। अली के बेजान पैर फर्श पर
जा रहे थे। एक पाँव की चप्पल नदारद थी, जबकि दूसरे पाँव में मौजूद चप्पल भी आधी टूटी हुई थी, जो यकीनन घसीटे जाने के बायस था, क्योंकि वो तीनों लड़के भी कमसनी की वजह से उसका बोझ मुकम्मल नहीं सहार पा रहे थे। उसके घसीटे पैरों तले उसे अपना दिल भी रौंदता महसूस हो रहा था। उस पल तीनों लड़कों ने उसको लाउंज में सोफे पर डाल दिया। ये क्या हो गया इसको? फरिया जैसे तड़पती हुई उसकी जानिब लपकी थी। वहाँ मौजूद सभी अफराद के चेहरों पर यही सवाल तहरीर था। उस्मान मगरूराना अंदाज में आगे आया, बेसुध पड़े अली के चेहरे के पास ज़रा सा झुका। आई थिंक इसने ड्रग्स लिए या कोई दूसरी नशावर चीज़ जो रिएक्ट कर गई है। सीधा होते बेहद सफाकियत से तज्जिया पेश किया। फरिया को लगा घर की छत उनके सर पर आन गिरी हो। खुद अलीना अगर दीवार को थाम न लेती तो अब तक ज़मीन बोझ हो चुकी होती। माहम अपने डूबते दिल पर हाथ रख के खुरम को बुलाने के लिए ऊपर की तरफ दौड़ी। लाउंज में मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी जब खुरम तेज़ी से लाउंज में दाखिल हुआ। अली के करीब आया, उसकी नब्ज़ टटोली और पास खड़ी माहम से कुछ कहा था। माहम अस्पात में सर हिलाती किचन में चली गई। खुरम ने नीचे कारपेट पर बैठी फरिया को देखा। अली के बालों में उंगलियां फेरती बेआवाज़ रो रही थी। रोइए मत चच्ची प्लीज़, अली ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है स्ट्रेस की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है। आप और चचा जान रिजल्ट कार्ड को लेकर गुस्सा भी तो बहुत हुए। खुरम का तसल्ली देता हुआ अंदाज सरासर मसनूही लग रहा था, मगर डूबते को तिनके का सहारा ही सही की मानित फरिया की बरसती आंखों में भी बेयकीनी सी सही, लेकिन उम्मीद की जलती बुझती दिया टमटमाई थी। तुम या तो खुद बेवकूफ़ हो या हम लोगों को अहमक समझते हो। साफ पता चल रहा है नशावर डोज लिए। सदा के खुद पसंद और खुद नुमाई के शौकीन उस्मान ने अपना तज्जिया रद्द किए जाने पर पहले से ज़्यादा बेकसी और सफाकी का मुजाहरा किया था। ये जितना तज्जिया तुम्हारे अंदाज से आया हो रहा है, इतना या तो किसी डॉक्टर को होता है या फिर उसे जो खुद आदिए नशई हो। लफ्ज़ों को सख्ती से अदा किया। अब डॉक्टर तो तुम हो नहीं, तो मैं क्या समझूं? सर नज़रों से उस्मान की तरफ देखते हुए वो तंजिया टोन में बोला, लगता है तुम्हें किसी से बात की तमीज़ नहीं सिखाई कि घर के दामाद से कैसे बात करते हैं। मिसेस शहबाज को जैसे खुरम की बात ने पतंगे लगा दिए। ये हमारा पर्सनल मामला है आंटी, प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं। माहम के हाथ से लीमू का रस से भरा गिलास लेते हुए मिसेस शहबाज की जानिब देखे बिना कदरे रखाई से कहा, तुम भूल रहे हो इस घर से हमारा भी कुछ रिश्ता है। बेगैरती की तफसीर बना उस्मान तनफुर से खुरम को देखता ढीठपन से बोला, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ अलीना से, और बेहतर होगा अपने मामलात उसी तक महदूद रखो। सपाट लबो लहजे में जवाब देते वो चम्मच की मदद से बेसुध अली के मुंह में कतरा कतरा लीमू का रस डालने लगा। चलो बेटा, तुम खामखा में अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? इस घर के लड़कों की तरबियत किस तरह से की गई है वो साफ नज़र आ रहा है। उसके साफ गोई पे पेचो ताब खाती हकारत भरी नज़रों से खुरम की तरफ देखती उस्मान का हाथ पकड़ते तनाती हुई वहाँ से चली गई। खुरम, बेटा अस्पताल ले जाओ इसे। अली के बेजान वजूद में कोई जुम्बिश न पाकर तायम्मी तशवीश ज़दा होती खुरम से कहने लगी, मुदस्सिर अंकल को कॉल कर दिया मैंने, आते होंगे वो। खुरम ने तसल्ली देते अंदाज में माँ की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर के आने तक खुरम की मुसलसल कोशिशों और घरेलू टोटकों से उसकी गनुदगी में कुछ कमी आ गई थी। आंखें खोलने की कोशिश भी की थी। डॉक्टर ने ड्रिप लगाते हुए तसल्ली दी कि 1.5-2 घंटों में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिट फाट होगा। जाते वक्त खुरम को दवाइयों की चिट थमाते साथ ताकीद भी की कि महज वक्ती ट्रीटमेंट थी। तबीयत बहाल होने के बाद इसे अस्पताल लाया जाए ताकि स्कैन करने के बाद इसका मुकम्मल इलाज शुरू किया जा सके। मुदस्सिर अंकल को रुखसत करके वो खुद चिट पर लिखी दवाएं लेने चला गया। घर में उसने सख्ती से सबको मना कर दिया था कि चचा जान या अब्बू में से किसी को भी अली के हवाले से कोई बात नहीं बतानी। लेकिन शाम को घर में दाखिल होते ज़िया साहब के झुके हुए कंधे और शिकस्ता सूरत देखकर यकीन आ गया कि ये मुआशरा वाकई किसी को सर उठाकर जीने नहीं देता। आज क्या हुआ था फरिया? कसूरवार ख्वाह लड़का हो या लड़की, मगर कटहरे में हमेशा माँ को खड़ा किया जाता है। 25 साल रफ़ाकत में पहली बार उसका मजाजी खुदा उससे शाकी हुआ था, और हुआ भी किस बात पर था जिसमें उसका कोई कसूर ही ना था। मगर नहीं, कसूरवार तो वो थी, इस वजूद को 9 महीने अपनी कोख में पालने का कसूर, इस दुनिया में लाने का गुनाह सरजद हुआ था। ये सोच कर कि वो उनका मुस्तकबिल में सहारा बनेगा। मगर क्या था मुस्तकबिल? बदनामी की कालक मला तारीक मुस्तकबिल। औलाद की बेवफाई रोग बन गई थी तो शौहर की बेरुखी ने जिगर पाश पाश कर डाला। खुरम ने आंखों ही आंखों में फरीहा से खामोश इल्तजा की थी। वो अपने आंसू छुपाती उठकर चली गई। माँ हमने अपने तय माहौल को नॉर्मल रंग देने के लिए माँ के साथ मिलकर 2-3 बेहतरीन डिशेस तैयार की। टेबल लगाकर सबको आवाज़ दी। ज़िया साहब खुरम के कुछ रद्दो बदल करके सुनाई गई कहानी से कितना मुतमईन हुए भी थे या नहीं, मगर इतना ज़रूर था कि वो खाने की टेबल पर मौजूद थे। अलीना एक टिक बाप को देख रही थी। खामोश नज़रें और झुके कंधे
औलाद के गम ने एक दिन में उन्हें किस कदर बूढ़ा कर दिया था। आंखों में उतरती नमी को बड़ी दिक्कतों से हलक में उतारते हुए वो अपनी प्लेट में चावल निकालने लगी। टेबल पर मौजूद सभी अफराद एक दूसरे से नज़रें चुराते खुद को खाने में मसरूफ़ जाहिर कर रहे थे, सिवाय अली के। उस वक्त सभी टेबल पर मौजूद थे और 7 अफराद की मौजूदगी के बावजूद वहाँ गहरे सकूत का राज था। खुद को पुरसुकून शो करने की सही में एक दूजे से कतरा रहे थे, लेकिन ये मसनूही सकून भी आर्जी साबित हुआ था। ज़िया साहब के नंबर पर उस्मान की आने वाली फ़ोन कॉल ने सबकी खुद साख्ता कोशिशों को मलिया मेट कर दिया। पल पल बदलती रंगत के साथ ज़िया साहब कुर्सी से लड़क कर यकीनन ज़मीन बोस हो चुके थे। अगर बर वक्त खुरम उठकर उन्हें संभाल न लेता, घर में एक कोहराम समझ गया था। आहें कोसने सिसकियाँ फरिया तो जैसे संभलने में नहीं आ रही थी। नुमान साहब और खुरम एम्बुलेंस मंगवाकर उन्हें अस्पताल में ले गए। अलीना जाए नमाज बिछाकर सजदे में गिर गई। अपने कमरे में गुमसुम बैठे अली को जब खबर हुई तो बाप के पास जाने के लिए तड़पने लगा, मगर ताई अम्मी ने किसी तरह उसे बहला फुसला कर रोक लिया। नुमान साहब से फ़ोन पर बात होने पर इतना मालूम हो सका था कि ज़िया साहब को दिल का दौरा पड़ा था और अभी वो आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन थे। इसके बाद दोबारा वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया था। खुद खुरम को कॉल मिलाकर उसकी उंगलियाँ टूट गई, मगर जवाब न दारुद। रात सारी सबकी आंखों में कट गई। सुबह अज़ानों के करीब उन्हें खतरे से बाहर होने का जान अफजा मसदा मिला। अलीना आंखों में तशक्कुर की नमी लिए वज़ू करने उठी। नमाज अदा करके वो सोने के जतन करने लगी, मगर कल से मुसलसल मिलने वाले आसाबी झटकों की जद में आया दिमाग उसे पुरसुकून नींद फराहम करने में नाकाम रहा था। तभी अपनी इज़्तिरारी कैफियत से उकताकर वो कमरे से बाहर चली आई। घर में मुकम्मल खामोशी का राज था, जिसका मतलब था कि सभी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके हैं। अली के कमरे का बंद दरवाज़ा तकते बिला इरादा उसके कदम उस सिमत उठे। नॉब घुमाकर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आई रोशनी ने कमरे को रोशन कर रखा था। उसने एक तायराना निगाह डाली। अली बेड के वस्त में औंधे मुँह पड़ा नजर आया। दाएं पैर का हिलता अंगूठा उसके अंदरूनी इज़्तिराब और जागे होने की निशानदेही कर रहा था। अली, उसने करीब जाकर धीरे से पुकारा। उंगली की हरकत रुकी, तकिए से मुंह उठाकर उसे देखा। जाग रहे हो? बात बराए बात कहा। वो खामोशी से उठकर बैठ गया। नींद नहीं आ रही तुम्हें भी? बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती उसके पास बैठ गई। नहीं, उसका अंदाज बेहद खोया हुआ था। नाश्ता बनाऊँ तुम्हारे लिए? उसने हद्दुल इम्कान लहजा नॉर्मल रखा। अली ने थके हुए अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। वो अगले 10 मिनट बैठी रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे, तो वो उठकर जाने लगी। तुम आराम करो, मैं जाकर मामा को देखती हूँ। अली के पुकार पर वो ठटकी। पलटकर सवालिया नज़रों से देखा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? उसका मध्यम लहजा पशेमानी का रंज लिए हुए था। पता नहीं अली, ये सब शायद इसी तरह होना लिखा था। बस दुख की बात यह है कि वजह तुम बने हो। उसके अफसरदा लहजे में बरसों की थकन उतर आई। अली की आंखों में पछतावा नमी बनकर चमकने लगा, तो उसका पहले ही गम से बोझल दिल मजीद दर्द की लपेट में आया था। गुजरे वक्त पर तो हमारा इख्तियार ही नहीं, मगर कोशिश करना, आने वाले वक्त में कोई ऐसा कदम ना उठाना जो बाद में खुद तुम्हारे लिए ही अजियत और नदामत का बायस बने। आई स्वेयर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बस एक बार बाबा ठीक होकर घर आ जाए, मैं उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। अपनी शर्ट की आस्तीनों से अपने आंसू पोंछता हुआ वो कितना बेज़रर और मासूम लग रहा था। अलीना छलकती आंखों से हंस पड़ी। इंशाल्लाह बाबा जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। प्यार से उसका गाल थपकाकर तसल्ली देती वो कमरे से निकली। कहाँ जा रही हो माहम? बाबा के लिए बनाए सूप को आखिरी नज़र देखकर इत्मीनान करती वो माहम से मुखातिब हुई, जो दूसरी तरफ चूल्हे पर रखे सालन के नीचे आंच धीमी करके किचन से बाहर जा रही थी। चूँकि खुरम ने घंटा भर पहले ही फ़ोन करके हदायत जारी की थी कि ज़िया साहब के परहेज़ी खाने के साथ नुमान साहब के लिए भी कुछ पकवा कर भिजवा दें, क्योंकि बाहर का खाना उन्हें सूट नहीं करता था। सो वक्त की कमी के बायस दोनों ने मिलकर किचन संभाल लिया। माहम ने बाप के लिए पसंदीदा भिंडी गोश्त बनाया, तो उसने बाबा के लिए सूप बनाने के साथ रायता और सलाद भी रेडी कर लिया। बस भिंडी गोश्त की भुनाई ज़रा सी बाकी थी। तभी माहम उसके ज़िम्मे वो काम लगाकर जाने लगी तो वो मतवज्जो हुई। खुरम भाई के कपड़े प्रेस कर लूँ, वो आते ही होंगे खाना लेने, माहम अजलत में कहती जाने लगी। तुम अपना सालन देखो, खुरम का सूट मैं इस्त्री कर लेती हूँ। माहम को रोककर वो खुद किचन से निकली। खुरम की अलमारी से उसके कपड़े निकालकर वो बाहर लाउंज में आकर इस्त्री करने लगी। माहम, मेरे कपड़े प्रेस कर लिए हो तो दो, मुझे जल्दी जाना है वापस। खुरम तेज़ आवाज़ में बोलता हुआ अंदर आया था। इस्त्री स्टैंड के पास उसे देखकर ठटक सा गया।
अलीना ने अचटती सी निगाह उस पर डालते हुए खामोशी से कपड़े उसे थमाए। बेख्वाबी और थकावट उसके चेहरे से अयां हो रही थी। अलीना किचन में आई तो माहम नफासत से खाना पैक कर रही थी। सलाद और रायता भी रख लेना साथ में, फ्रिज में पड़े हैं। उसे याद दहानी करवाती वो खुद सॉस पैन में दूध और चीनी पत्ती डालकर चूल्हे पर रखने लगी। माहम टिफ़िन रेडी हो तो जल्दी दो, देर हो रही है। खुर्रम किचन के दरवाजे में खड़ा गोया हुआ अंदाज में उजलत थी। खुर्रम भाई बस 2 मिनट प्लीज़, खाना खा के जाइए। माहम अजलत से उसके लिए खाना निकालने लगी। अंदाज में मखसूस बहनों वाला प्यार और फिक्रमंदी थी। उस वक्त मूड नहीं हो रहा है कुछ भी खाने को, तुम बस टिफ़िन दो, जल्दी देर हो रही है। चाय तो पी सकते हैं या वो भी नहीं पीनी? उसका खफा खफा सा धीमा लहजा खुर्रम के साथ साथ माहम को भी चौंका आ गया। खुर्रम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर फिर कुछ सोचकर होंठ भींच लिए। अच्छा सही है मगर प्लीज़ ज़रा जल्दी। खुर्रम वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अलीना कैबिनेट से एक मग निकालकर चाय डालने लगी। अंदाज में महसूस की जाने वाली तेज़ी और बौखलाहट थी। चाय का कप उसे थमाकर वो दोबारा स्लेब के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। जो कि रास्ते में वो खड़ा था इसलिए बाहर जाना मुमकिन नहीं था। दिल मचल रहा था बाबा का पूछने को, पर अंदर मचा जल थल रोके हुए था। वो जानती थी कुछ भी कहते साथ ही वो रोक देगी। तभी इस तरह से लब काटती नज़रें नीचे किए खड़ी थी। चाचा जान कैसे हैं? दिल की कुरलाहट सदा बनकर माहम के लबों से निकली। वो भी लब काटने का अमल मौक़िफ़ करके उसको देखने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, हो सकता है शाम तक डिस्चार्ज कर दें। अलीना के अंदर जैसे ढेरों सुकून उतरा। आंखों में तशक्कुर की नमी लिए वो बेइरादा आई उसे देखने लगी। चेहरे की थकान तो शावर लेने से ज़ायल हो चुकी थी मगर आंखों की सुर्खी अभी भी नुमाया थी। चाय का खाली कप स्लैब पर रख माहम के हाथ से टिफ़िन बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अलीना की नज़रें जैसे उसके हाथों पर जम सी गई। मजबूत कलाई वाले सांवले हाथ जिनसे कल वो उसके माँ जाए को पानी पिला रहा था। क़यामत ख़ेज़ घड़ी में कल इन्हीं हाथों ने तो उसके गिरते बाबा को संभाला था। अपने मार भी दे तो छाँव में डाल कर जाते हैं। एक मुर्दा इंसान को उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसे धूप की तमाज़त सुलगाए या छाँव मुयस्सर हो। साहब पता चल रहा है नशावर डोज ली है। माहम और खुर्रम कब के जा चुके थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। नीम मुर्दा वजूद जैसे धूप की तमाज़त गल कर सड़ रहा था। खुर्रम के कहे के मुताबिक ज़िया साहब वाकई शाम तक डिस्चार्ज होकर घर आ गए, लेकिन परेशानियों बीमारी ने एक दिन में ही उनके अंदर से तवानाई निचोड़ ली थी। ख़ानदान भर में काम चोर मशहूर अलीना हर 15 मिनट बाद उनके लिए कुछ न कुछ बनाकर ले जाती जिन्हें वो सिर्फ चख कर वापस रख देते। जिस वक्त खुर्रम अली को लेकर उनके कमरे में आया तब सभी के दिल सहम गए। ज़िया साहब ने उसे देखकर मुँह फेर के आंखें बंद कर ली। अली रोता हुआ आगे बढ़कर खुद ही उनके सीने से चिमट गया। उस वक्त रक़्क़त अमेज़ मंजर ने सभी की आंखें नम कर दी। खुद ज़िया साहब की बंद आंखों से भी कहीं आंसू लकीर बनाते तकिए में जज्ब हो गए। ज़िया साहब को दवा खिलाकर उनके कमरे की लाइट ऑफ करके दरवाज़ा आहिस्ता आवाज़ में बंद करके बाहर आई। अपने कल से उलझे बालों को हाथ से संवारती वापस जोड़े की शक्ल में लपेटकर कैचर लगा के छत पर चली आई। वहाँ पर पहले से मौजूद खुर्रम को देखकर चौंकी थी। आप अभी तक जाग रहे हैं? मुझे लगा थके हुए हों, सो गए होंगे। वह हैरत का इजहार करती बोली, मैं कौन सा हल चला के आ रहा हूँ। उसकी बात के जवाब में मुँह मुस्कुराया। एक दिन में हालातों वाक़यात के साथ कितना कुछ बदल गया। उसके आप को खुर्रम ने बेहद महसूस किया था। फिर भी कल से सोई नहीं तो ज़ाहिर है बंदा थक जाता है। खुर्रम ने नीम अंधेरे में गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत ममनून नज़र आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर सीधा हुआ। कल जो भी मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था। अली मेरा छोटा भाई और चाचा जान का हक़ है मुझ पर। अपना फ़र्ज़ अदा करके मैंने कोई ऐसा तीर नहीं मारा जो बिस्तर से लग जाऊं। अपनी बात मुकम्मल करके उसने जैसे अलीना को लाजवाब कर दिया। अभी तो वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तमहीद बांध रही थी, लेकिन अब कुछ भी कहना फजूल और बेतुका लग रहा था। तभी माहम भी ऊपर आई थी और दोनों को देखकर झटका लगा। दो हरीफ आमने सामने और अमन व अमान की सूरत हाल। उसे जैसे अपनी बसारतों पर यकीन नहीं आया। आज तो मौसम कुछ ज़्यादा ही खुशगवार है। करीब आकर लतीफ़ सा तंज करने लगी। खुर्रम उसके सर पर चट लगाकर चला गया। वो जानकर अनजान बनी ऊपर आसमान की सिमत देखने लगी। 1 घंटे से कमरे में मुसलसल चक्कर काटने से उसके तलवे दुखने लगे थे, मगर अंदर से उठता गुस्से का उबाल उसे पुरसुकून होने नहीं दे रहा था। शाम में शहबाज अंकल होकर गए थे। उसे लगा बाबा की अयादत को आए होंगे, मगर उनके आमद का मुद्दा जानकर वो तो गोया कांटों पर लौटने लगी। बहुत देर कड़ने कसलने के बाद वो फैसला कुन अंदाज में कमरे से निकली। कहाँ थी तुम? कब से मैं अकेली बोर हो रही हूँ। शहबाज अंकल को भी सलाम करने बाहर नहीं आई तुम? नॉट फेयर। माम उसे देखकर नाराज़गी से गोया हुई। जो बंदा मेरे बाप का एहतराम नहीं करता मैं उसके बाप को इज़्ज़त क्यों कर दूँ? सब कहाँ हैं? रखाई से जवाब देकर ताहिराना नज़रों से अतराफ़ में देखते बेतासुर अंदाज में पूछा। सब चचा जान के कमरे में जमा हुए हैं, बाहमी मुशावरत हो रही है। उसके सपाट चेहरे पर गौर किए बिना माहम शरारत से बोली,
वो उसी सरसपाट तासुरात के साथ आगे बढ़ी। अरे तुम कहाँ चल रही? बड़ों के सामने अपनी शादी के मामलात में बोलती अच्छी लगोगी। पीछे से माहम ने शरीर अंदाज में पुकारा, लेकिन उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बाबा के कमरे के बाहर रुककर 2-3 गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। अंदर से बातों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। तमाम हिम्मतें मुजतमा करके नॉब घुमाया। खटके की आवाज़ पर कमरे में मौजूद सभी नफूस की निगाहों का रुख उसकी सिमत हुआ। सबको अपनी तरफ मतवज्जे देखकर वो झिझकती हुई आध खुले दरवाजे की दहलीज पर ही रुक गई। क्या बात है अलीना, तुम बाहर चलो, मैं आ रही हूँ। फरिया का सरजुनिश करता अंदाज इस बात का आकाश था कि उन्हें उसकी आमद अच्छी नहीं लगी, मगर अलीना ने उनकी तरफ देखा नहीं, बल्कि वो कमरे में मौजूद किसी भी फरीक को नहीं देख रही थी। वो सिर्फ ज़िया साहब को देख रही थी। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। इजाज़त तलब करता हुआ अंदाज किसी गलत सिग्नल का इशारा दे रहा था। ज़िया साहब सोच में पड़ गए। बाबा, मैं उस्मान से शादी नहीं कर सकती, वो बोल पड़ी बगैर इजाज़त के ही। अलीना, ये बड़ों के तय करने के फैसले होते हैं, तुम जाओ यहाँ से। नुमान साहब ने उसे तादीबी नज़रों से देखते सख्ती से टोका। नहीं तायाबा, ये मेरी ज़िंदगी है और फैसला करने का इख्तियार मेरा बुनियादी हक है। बाएं गाल पर पड़ने वाला चांटा उसकी बात नामुकम्मल रह जाने का मुअज्जिब बना। औलाद नहीं, अजाब नाजिल किए हैं खुदा ने हम पर। एक ने बिस्तर से लगा दिया, तुम लाहद में उतार कर ही दम लोगी। फरीहा जैसे गमो गुस्से से बेकाबू होती आपे से बाहर रोने लगी। हाथ से पकड़कर उसे कमरे से बाहर लाकर सोफे पर पटका। किचन में काम करती माहम भी अपनी शाइस्ता और नरम खो चाची का ये जारहाना अंदाज देखकर घबराकर किचन से निकल आई। चाहे कुछ भी कर लें आप लोग, मगर मैं उस नीच और कमज़र्फ इंसान से शादी नहीं करूँगी, ख्वाह उसके लिए मुझे जहर खाकर मरना ही क्यों ना पड़े। सोफे पर गिरकर वो नीम आंखों से फरिया की तरफ देखती चिल्लाई। थोड़ी देर पहले जो थोड़ी सी झिझक और सहम दिल में था, फरिया के रवैये ने वो भी ख़त्म कर डाला। अंदाज़ो अल्फाज में सरकशी साफ झलकती थी। खुदा करे फिर तुम मर ही जाओ, बल्कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें जहर ला कर देती हूँ। फरिया फिर से खुद पर कंट्रोल खोती उसे मारने को लपकी। चाची जान, प्लीज़ कूल डाउन, रिलैक्स हो जाइए आप। माहम, तुम प्लीज़ अलीना को अंदर लेकर जाओ। खुरम ने पीछे से आकर फरिया के हाथ पकड़ लिए और मलतजी नज़रों से ढीठ बनी अलीना को देखा। वो माहम के बड़े हाथ को नज़रअंदाज करती जारहाना अंदाज से उठकर चली गई। खुरम पीछे रोती बिलखती फरिया को दिलासे और तसल्लियाँ देकर संभालने की कोशिश कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते से घर पर जैसे सोग सा तारी था। हर कोई एक दूसरे से नज़रें चुराता अपने खौल में बंद था और वो खुद कमरा नशीन हुई थी। ना उसे किसी ने तलब किया था, ना उसे कोई मतलूब था। उस दिन के बाद माहम के अलावा उसने किसी को भी नहीं देखा था। वो भी खुद उसके कमरे में खाना देने आती, बात करने की कोशिश भी करती, लेकिन उसका ठुस अंदाज देखकर नाकाम लौट जाती। एहतजाज के 11वें रोज़ माहम फरिया का पैगाम लेकर नमूदार हुई थी, जो कि ज़हनी तौर पर वो इस पैगाम की 11 दिनों से मुंतज़िर थी। तभी अंदर से उठती इश्तियाल अंगेज़ लहरों के बावजूद बज़ाहिर पुरसुकून रही। माहम अपनी बात के रद्द-ए-अमल में खड़ी उसका चेहरा खोजने की कोशिश करने लगी, मगर उसके सपाट तासुरात से कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सुन लिया मैंने, अब जाओ। खासी नागवारी से उसने अपनी तरफ हॉन्कों की तरह देखती माहम को झाड़ा। जवाबन वो मुंह फुलाकर खफकी भरी एक निगाह उस पर डालती चली गई। माहम के जाते उसने लपक कर अपना फ़ोन उठाया और उस्मान का नंबर डायल किया। आफ्टर ऑल मिस यूनिवर्स को याद आ ही गई हमारी। फ़ोन ओके होते साथ ही उस्मान का तुर्श लहजा सुनाई दिया। तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ है? व्हाट? उस्मान के 14 तबक रोशन हो गए। नहीं, मैं पिछले 1 महीना से तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। तुम्हारी कॉल स्पीक नहीं करती, तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, तुम्हारे भेजे गए वॉइस मैसेजेस बिना सुने डिलीट कर दिए। इस सब का क्या मतलब निकलता है? वो जैसे सांस लेने को रुकी। इसका यही मतलब हुआ ना कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, तो फिर किस बर्ते पर तुम अपनी माँ को मुझे लेने भेज रहे हो, शादी की शॉपिंग करवाने? अलीना ने अपने अंदर जमा हुए सारे गुबार को एक साथ निकाला। हो क्या चीज़ तुम? किस शय पर इतना उछल रही हो? लगता है औकात भूल गई हो अपनी। बेहतर होगा अपनी हद में रहो और मुझ संभाल कर बात करो मुझसे। उस्मान अपने फितरी नीचपन पर उतरा। मैं अपनी हद में ही हूँ और अच्छा होगा तुम भी हदूद में रहने की आदत सीख जाओ और अपनी माँ को मना कर दो यहाँ ना आए, वरना। उसकी बात तुर्शी से काट के चैलेंजिंग अंदाज अपनाया। वरना तो बदलिहाजी और कमीनेपन में मैं तुमसे बहुत आगे हूँ। तल्खी और हकारत से कहते हुए उसने फ़ोन काटा और एक गहरी सांस खींचती। बहुत अरसे बाद वो अपने आप को बहुत पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। चेंज करके वो कमरे से निकली। चाय बनाने के लिए किचन में आई तो फरिया पहले से ही खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर चौंकी। अलीना चाय बनाने के लिए सॉस पैन में पानी डालने लगी। मैं बना दूँ? फरिया ने उसे देखते हुए नरमी से कहा। माँ थी, भला कब तक नाराज़ रह सकती थी? मैं बना रही हूँ, उसने संजीदगी से जवाब दिया। चाय तैयार हुई तो उसने 2 कपों में निकालकर एक कप फरिया की तरफ बढ़ाया और अपना कप लेकर वहीं किचन में कुर्सी खींचकर बैठ गई। फरिया भी चूल्हा बंद करती उसके करीब आकर बैठ गई।
میں جانتی ہوں بیٹا تم ہم سے ناراض ہو، مگر تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے مجبوراً تم پر سختی کرنا پڑی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتی وہ ملال سے کہنے لگی۔ علینا بدستور سر جھکائے کپ کے کنارے پر انگلی پھیر رہی تھی۔ عورت جب کسی مرد کی ہمراہی کی حامی بھرتی ہے تو اسے اپنی انا، اپنی خودداری اور اپنی عزت نفس کو ذات کی کسی اندھیری گہرائی میں دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ آگے چل کر اسے قدم قدم پر سمجھوتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر انا زندہ رہے تو رشتہ نہیں رہ پاتا۔ اور اس سے جس بات کو لے کر تم جان لینے کے در پہ ہو، ایسی معمولی باتوں سے تو ہر لڑکی کا روز سامنا ہوتا ہے۔ ان کے ناسے انداز میں آج زردگی بھی تھی اور اذیت بھی۔ علینا نے تڑپ کے سر اٹھایا۔ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے ماما، اس نے میرے آپ کے سب کے سامنے ہماری علی کو، اس کا گلا رندھنے لگا۔ اس جملے کو یاد کرتے اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کوئی جھوٹ بھی تو نہیں کہا تھا اس نے۔ ممتا بھرے دل پر پیر رکھ کر فریحہ نے سچ کا آئینہ دکھایا۔ تو کیا ضروری ہے ہر سچ کو اتنی ہی سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے؟ سے سکتا ہوا سوال ہوا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے میری جان۔ برہنہ کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس چادر تو نہیں ہوتی، مگر چھید لگے دامن کو یہ ضرور انگلی ڈال کر پھاڑ دیتے۔ فریحہ کے آزردہ لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ کیا ہو جاتا ذرا سا بھرم رکھ دیتا، خرم بھی تو تھا نا ساتھ میں۔ دل میں اٹکی پھانس آنسو بن کر نکلنے لگے۔ فریحہ اس کے بچگانہ انداز پر اداسی سے مسکرائی۔ یہی تو فرق ہوتا ہے اپنوں اور پرایوں میں۔ خرم کا خون کا رشتہ ہے علی سے، اور میرا دل کا رشتہ تھا اس سے۔ تو کیا دل کے رشتے اتنے بے اثر و بے وقت ہوتے ہیں؟ وہ آزردگی سے سوچنے لگی۔ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی اس کے احساسات کی طرح۔ بیٹھو، میں چائے گرم کر دیتی ہوں، اسے اٹھتے دیکھ کر فریحہ نے کہا۔ نہیں، موڈ نہیں ہو رہا اب۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ آہستگی سے کہتی وہ کچن سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ لاشعوری طور پر وہ بابا کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتظار تمام ہوا۔ بابا آئے تھے، حسب توقع کچھ ناراض، کچھ طیش زدہ سے تھے، مگر پچھلی بار کی طرح اس نے جذباتیت سے نہیں بلکہ تحمل و بردباری سے کام لیا۔ بابا، جو انسان عزت کرنا نہیں جانتا وہ مجھے خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ میں ساری عمر ناخوش رہوں؟ کیا مجھے ناسودہ دیکھ کر آپ لوگ چین سے رہ سکیں گے؟ اپنی بات مکمل کر کے گیند ان کے کوٹ میں پھینک کر وہ اٹھ کے چلی گئی۔ میرے خیال سے علینا کی بات اپنی جگہ 100% درست ہے۔ بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے وقت پر کوئی بہتر فیصلہ کیا جائے۔ اس کے جانے کے بعد خرم نے اس کی حمایت کرتے اپنی آراء کا اظہار کیا تھا، مگر برخوردار یہ وقت ہی تو نہیں ان باتوں کا۔ شادی کے کارڈ چھپ کر آ چکے ہیں، ایسے میں ہم لوگوں کو کیا وجہ بتائیں شادی منسوخ ہونے کی؟ نعمان صاحب کو بیٹے کی تجویز نامعقول سی لگی۔ تو کیا لوگوں کے ڈر سے ہم علینا کی زندگی خراب کر دیں؟ پہلے تو چلو ہم بے خبری میں مارے گئے، مگر اب تو اس کی اصلیت کھل کر سب کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ ایک نام نہاد پڑھا لکھا جاہل انسان ہے جس کے پاس ڈگریوں کے انبار تو ہے مگر علم کا فقدان ہے۔ ایسے ذہنی مریض کے ساتھ وہ کیسے گزارا کر سکے گی؟ خرم کے جذباتی انداز سے علینا کے لیے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ خرم کی سمت دیکھتی زیاد صاحب کی آنکھوں میں یاست کے رنگ گہرے ہوتے گئے۔ کیسے ہیرا صرف انسان کو گوا دیا تھا ان کی نادان بیٹی نے اپنی حماقت کے ہاتھوں۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، پر یہ بھی تو سوچو ہم خاندان والوں کو کیا وجہ بتائیں گے؟ مانا کہ کارڈ نہیں بٹے، پر شادی کی خبر تو سب کے کانوں تک پہنچ چکی ہے۔ ایسے میں رشتہ ٹوٹا تو علی والا معاملہ بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ زیاد صاحب نے اس سارے معاملے میں پہلی مرتبہ لب کشائی کی تھی۔ وہ سخت کشمکش میں لگ رہے تھے۔ دھیما انداز قائل ہونے کی دلیل تھا، مگر رسوائی کے فکر و اندیشے بھی اپنی جگہ قائم تھے۔ چاچا جان، آپ بس شہباز انکل کو نپٹائیے، باقی میں سنبھالوں گا۔ شادی اسی دن ہوگی جو طے شدہ ہے۔ خرم خاصا پر اعتماد تھا۔ مگر شادی ہوگی کس سے پھر؟ زیاد صاحب الجھ کر رہ گئے۔ ایک بہت اچھے سلجھے ہوئے شریف انسان سے۔ خرم کا اعتماد قابل دید تھا۔ مخل ہونے کے لیے معذرت خواہ ہوں بیٹے، لڑکے کی ہی بات ہو رہی ہے یا بکرے کی؟ بیٹے کے سنسنی پھیلانے والے انداز پر نعمان صاحب چڑھ کر طنزیہ بولے۔ فی الحال تو لڑکے کی ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بقرہ عید میں ابھی بہت ٹائم ہے۔ خرم کے رنگ ڈھنگ نرالے لگ رہے تھے۔ تو پھر بتا بھی چکو، وہ شریف النفس منکسر المزاج بیبا بچہ ہمیں ملے گا کہاں؟ آسمان سے ٹپکے گا یا زمین کو چیرتا ہوا باہر نکلے گا؟ نعمان اچھا خاصا کھار کھائے بیٹھے تھے، تبھی بھنا کر گویا ہوئے۔ اپنے بیٹے کی شرافت پر آپ کو شک ہے کیا؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ نعمان صاحب سختی سے بولے۔ جی ہاں، قطعیت سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چل دیے؟ نعمان صاحب نے جرح کی۔ کارڈ پر سے عثمان شہباز کا نام ہٹوا کر خرم نعمان لکھوانے۔ برجستہ جواب آیا۔ دونوں بھائیوں نے تعجب خیزی سے جاتے ہوئے خرم کی پیٹھ کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو، اور پھر جیسے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کمرے میں آ کر علینا پر ایک سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔
60% केस वो जीत चुकी थी। इतना तो बाबा की खामोशी से उसे अंदाज़ा हो गया था। बाकी का 30% वो जानती थी खुर्रम उन्हें दलाल से काल करके फ़ैसला उसके हक़ में करवा देगा। वो जानती थी अहद वक्त पर इनकार उस जैसे खुद पसंद शख्स के लिए धचके से कम ना होगा, और वो उस घमंडी इंसान के मुंह पर ज़िल्लत का ऐसा तमाचा मारना चाहती थी कि उसे अपनी औकात याद आ जाए। एक लंबे अरसे बाद वो इतने सुकून से सोई थी, इस बात से बेखबर कि अगले दिन का सूरज उसके लिए कैसी क़यामत खेज़ घड़ी लेकर नमूदार होने वाला है। अगले रोज़ शाम में उस्मान के नंबर से मौसूल होने वाली तस्वीर ने उसके वजूद को हिला कर रखते आंखें फाड़े बेयकीनी से वो बार बार हर तस्वीर को जूम करके देख रही थी, मगर तमाम तर बेयकीनी के बावजूद उसे यकीन करना पड़ा था। वो तस्वीर उसकी, चेहरा भी उसी का था, मगर वो लिबास उसका ना था जो तस्वीर मुझसे निम बरहना ज़ाहिर कर रहा था। मगर ये बात सिर्फ वो जानती थी या उसका खुदा? कौन यकीन करता कि वो तस्वीरें फ़ेक थी? वो इस महारत से एडिट की गई थी कि खुद उसकी आंखें धोखा खा रही थी। उन तस्वीर के साथ एक मैसेज भी था। उसने लर्ज़ते हाथों से उस वॉइस मेल को प्ले किया। आई होप पिक्चर्स पसंद आई होंगी मेरी स्वीटी। उसके अंदर नफ़रत का शदीद रेला उठा। वैसे तो मेरे फ़ोन में होने वाले सुसर जी का नंबर भी फीड है, मगर सोचा तुम्हारा शाहकार है तो पहला हक़ तुम्हारा बनता है देखने का। कदमों तले ज़मीन से रखने लगी, वरना बाद में भी गिला करती। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अपने बाबा से बहुत प्यार है, और बाबा की प्रिंसेस ये तो हरगिज़ नहीं चाहेगी कि बाबा दोबारा आईसी पहुँचे। उसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। इसलिए बाबा की परी को अभी जाकर बाबा से साफ साफ कहना होगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। सुसर जी को नाक रगड़कर अपना माजूरतनामा वापस लेना होगा। बाय द वे, मेरे मामा का कहना है कि उनके प्रिंस के लिए लड़कियों की कमी नहीं, मगर क्या करूं स्वीटी, अगर मोहब्बत होती तो छोड़ देता, मगर तुम तो ज़िद बन गई हो। शुरुआत तुमने की थी जंग की, और हारना उस्मान शहबाज ने सीखा नहीं। किस कदर मकरू और शैतान से पुर अंदाज था। वो फ़ोन दूर उछाल कर हाथों में चेहरे छुपाए के फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? बेबसी की इंतहाओं पर पहुंची, दोनों हाथों की मुट्ठी में बालों को जकड़ के सिसक पड़ी। अलीना, क्या हुआ है? महम कमरे में आई तो उसे कारपेट पर यूं लुटी पुटी हालत में बैठे देखकर घबरा कर आगे आई। जवाबन उसने आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर उसे देखा। उफ, किस कदर वहशत थी उन आंखों में। महम को झरझरी आई। अलीना प्लीज़ यार, कुछ तो बोलो। महम हकीकतन परेशान हो गई थी। मेरा एक काम करोगी? उसके भरी लहजे में सोज भरा बोझलपन था। हाँ बोलो। महम को खौफ सा महसूस हुआ उसके अंदाज से। तुम जाके बाबा से कहो मैं उस्मान से शादी के लिए तैयार हूँ। उसने नज़रें चुराई। महम भौंकती रह गई। तो तुम पागल तो नहीं हो गई? महम को अब सचमुच तशवीश होने लगी थी। महम प्लीज़ प्लीज़ देखो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लहजे में आंसुओं की अमेजिश खुलने लगी। महम तशवीश ज़दा नज़रों से उसे देखती धीरे से उठकर कमरे से निकली। अब उसका रुख खुर्रम के कमरे की जानिब था। चंद मिनटों में दनदनाता हुआ उसके सर पर खड़ा था। समझ क्या रखा है तुमने हम सबको? हाँ, क्या समझती हो? हम कोई कठपुतलियाँ हैं जो तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे? हाँ बताओ, जवाब दो। चिंगाड़ता हुआ लहजा था। उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करते उस बेरहमी से झंझोड़ा कि उसके हसियात झुंझुना उठे। वो जो पहले ही सदमे से न ढालती, उस बेरहमाना सलूक की ताब न लाते हुए उसके बाजुओं में झूलने लगी। ओ शट अप! वो बुरी तरह झुंझलाया। उसके होशो खर्द से बेगाना वजूद को धीरे से पीछे बिस्तर पर लौटाकर महम की तलाश में बाहर निकलने लगा। तभी उसके शूज़ के नीचे कोई चीज़ आ गई। उसने चौंकते हुए नीचे देखा। लीना का सेल फोन उल्टा पड़ा था। उसने ज़रा से अपना पैर हटाकर झुककर नीचे से फ़ोन उठा लिया। रखने से कबल लाशौरी तौर पर चेक करने लगा कि कहीं पैर के नीचे आ जाने से फ़ोन में कोई ख़राबी तो पैदा नहीं हुई। उसने साइड बटन को पुश किया। लम्हे के 1000वें हिस्से में स्क्रीन रोशन हुई। सब ठीक था। फ़ोन LCD की बचत हो गई थी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर उस्मान के मैसेजेस का नोटिफिकेशन देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। गर्दन मोड़कर बेसुध पड़ी अलीना को देखा, फिर अध खुले दरवाजे से मोहतात निगाहों से बाहर देखा। राहदारी सुनसान थी। वो वापस मुड़ा, बिस्तर के करीब आया, उसके फिंगर से फ़ोन अनलॉक किया, व्हाट्सएप खोला। उस्मान के नंबर से बेशुमार मैसेजेस थे। माथे के बिलों में इजाफा होने लगा। उसकी चैट ओपन करते साथ ही उसकी आंखों में खून उतर आया। फ़ोन को सख्ती से मुट्ठी में भींचकर वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकला। ये क्या तुम कमरा नशीन हुई बैठी हो? चाचा जान कहीं बार पूछ चुके हैं तुम्हारा। महम कमरे में आई तो उसे दराज में कुछ तलाश करता देखकर मुंह बनाती बोली, बाबा आ गए। वो दराज बंद करती सीधी हुई। हाँ जी, आधा घंटा हो गया उन्हें आए हुए, और इन 30 मिनट्स में बिला मुबालगा कोई 6 दफ़ा पूछ चुके हैं तुम्हारा। मूड कैसा है उनका? अब वो झुकी बैठ के नीचे कुछ तलाश कर रही थी। ठीक है। क्यों? महम ने अचंभे से उसे देखा। और ये तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है यार, कब से ढूंढे जा रही हूँ। वो सर उठाए उसे देखते थकी थकी अंदाज में बोली, देख लो यहीं कहीं पड़ा होगा। नहीं है, सुबह से सारा कमरा छान मारा मैंने। उसका अंदाज पसमर्दा था।
तो फिर किसने लिया होगा? तुम्हारे कमरे में तो मेरे सिवा कोई आता भी नहीं, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे बेहतरीन फ़ोन है। वो इतराई। अलीना एकदम चौंकी। खुरम आया था मेरे कमरे में कल। उसे याद आने लगा, कल माहम के जाने के बाद खुरम तैश के आलम में उसके कमरे में आया था। इसके बाद जाने क्या हुआ, उसके हवासों पर धुंध सी छा गई थी। मगर जब उसकी आंख खुली तो खुरम की जगह माहम को वहाँ पर मौजूद पाया, और फिर आने वाले तूफान के खौफ से वो इस कदर नढालो पसमर्दा थी कि बिस्तर से उठ ही ना सकी। कबूतर की तरह आंखें मूंद के खुद को महफूज तस्वुर करती कमरे में बंद रही। ये ख्याल तो अभी आया था कि उसका फ़ोन तो कल से गायब था। तुम मेरे भाई को चोर कह रही हो? माहम बिगड़ी। फिलहाल तो कुछ नहीं कह रही, पर अगर बरामद हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। अपने अज़ाइम से आगाह किया। शर्म करो, कुछ और इज्जत किया करो। अब मेरे भाई के आफ्टर ऑल होने वाली मजाजी खुदा हैं, माहम ने छेड़ते हुए कहा। अब ये क्या बकवास है? वो तंदही से उसकी तरफ घूमी। मतलब? जाने न जाने, गुल ही न जाने। माहम को लुत्फ आने लगा उसे चिढ़ाने में। साफ साफ बको, मतलब क्या है इस बात का? अब उसने माथे पर बल डाले नागवारिया से उसे टोका। हाय, इस सादगी पे कौन ना मरे है खुदा। अपने स्याह जुल्फों के जाल में मेरे भोले भाले भाई को फंसा कर वो यूं बनते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माहम की तबीयत की चौंचाली अरूज पर थी। जस्ट शट अप, बाहर में जाओ तुम। वो तुलमलाती हुई कमरे से निकली, तन फन करती अगले ही लम्हे खुरम के सर पर खड़ी थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में अपनी जज्बातियत के हाथों से शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। खुरम जो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा अपने बाएं बाजू पर बैंडेज लगा रहा था, इस सफ्ताद के जाम पर सटपटा सा गया। वो दिल ही दिल में अपनी अजलत पसंदी पर खुद को कोसती। आई थिंक किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। वो मरहम पट्टी छोड़कर बिस्तर पर पड़ी हुई शर्ट उठाकर पहनने लगा। खैर बताओ क्या काम है? उसका अंदाज इतना ही सरसरी और लिया दिया था जितना हमेशा से हुआ करता था। अलीना को शक गुजरा, कहीं माहम ने कुछ देर पहले उससे मजाक तो नहीं किया था। मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, इस वाले ड्रॉ में देखो। जुमला पूरा होने से कबल ही खुरम ने बेड साइड डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो हैरत से उसका मुंह तकने लगी। उसे तो लगा वो मुकर जाएगा या फिर गुस्सा होगा, मगर खैर वो सर झटक कर मतलूबा डोर तक आए। फ़ोन निकाला, फ़ोन ऑफ था। वो ऑन करने लगी। खुरम ने खासे ज़ब्त से उसे देखा। शर्ट वो आगे के सिर्फ 2 बटन बंद किए, जैसे उसके जाने के इंतज़ार में खड़ा था, लेकिन उसका तवील होता क्या अब उस पर झुंझलाहट तारी करने लगा था। अलीना के अंदर का चोर इस कदर बेचैन था कि वहीं खड़े खड़े वो फ़ोन चेक करने लगी। व्हाट्सएप से चैट गायब थी। उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी। आपको किसने हक दिया है कि आप मेरी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करें? गम और गुस्से से उसका लहजा कांप रहा था। खुरम ने उसकी तस्वीरें देख ली थी। यह एहसास ही उसे शर्म से मर जाने पर मजबूर कर रहा था। यही सवाल मेरा तुमसे है अलीना, तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया कि सारे फैसले तुम अकेले करो? उसका अंदाज धीमा लेकिन जारहाना था। वो मेरा मसला था, मैं खुद हैंडल कर लेती। आपको क्या हक पहुँचता है किसी की ज़ातियात में घुसने का? वो बेदर्दी से अपनी नम आंखों को रगड़ती तल्खी से बोली। वो सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं था, वो इज़्ज़त का मामला था। तुम्हारी इज़्ज़त का, हमारी इज़्ज़त का, इस घर की इज़्ज़त का। वो तंदही से पलटा। वो तस्वीरें फेक थी। वो जैसे अपने दफ़ा में चिल्लाई। और ये यकीन तुम कितने लोगों को दिला पाती? खुरम का तीखा लहजा दिल में चुभा था। अपनी गलती तसल्ली मुकर लिए, कफ़ारा अदा कर तो रही हूँ। लहजा आप ही आप बहराने लगा। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें कोई कफ़ारा अदा करने की। गलती जिसकी थी उसे सज़ा भी मिल गई है। खुरम के संजीदा अंदाज पर वो चौंकी। क्या मतलब है? आप मिले थे उससे? हाँ मिला था, और अब प्लीज़ तुम जाओ, मुझे काम है। उसे अपनी शर्ट की आस्तीन गीली होती महसूस हो रही थी। जब भी बेचैनी से बोला, तो ये सब उस घटिया इंसान ने किया है? दफ़तन उसकी निगाह भी बाजू के ऊपर से रंगीन होती शर्ट पर पड़ी। इट्स ओके, जितना सबक उसे मैं सिखा कर आया उसके मुकाबले में ये बहुत मामूली चोट है। तुम जाओ, मैं बैंडेज कर रहा हूँ। वो लहजे को सरसरी सा बनाकर लाइट मूड में बोला। नहीं मैं कर देती हूँ, आप दिखाइए मुझे। वो बेताबी से उसके करीब आकर मासूम लहजे में बोली। सिर्फ कहा नहीं बल्कि उसके शर्ट के बटन भी खोलने लगी। खुरम ने नरमी से उसका हाथ रोका। अभी रहने दो, चंद दिन की बात है, बाद में सारी ज़िंदगी करती रहना मेरी खिदमतें। उसके धीमे लेकिन मायने खेज अंदाज पर वो ठटक कर उसका चेहरा देखती 2 कदम दूर हुई। तो क्या माहम सच बोल रही थी? तेज़ी से उसका जहन सोचने लगा। आंखों में धुंध उतर आई। आप अच्छे हैं ये मैं जानती हूँ, मगर इतने भी अच्छे नहीं कि खुद अपने लिए ही बुरे बन जाएं। खुरम ने अब्रू अचकाकर उसे देखा। अब इस पहेली का मतलब भी समझा दो। आप बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं, और मैं नहीं चाहूँगी कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करें। उसकी आंखों में उदासी के रंग गहरे होने लगे। मगर मुझे बहुत अच्छी लड़की नहीं, थोड़ी अच्छी और कुछ बुरी लड़की चाहिए, जो मेरी खूबियों की कदरदान हो। वो दिलचस्पी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता गहरे लहजे में गोया हुआ। उसकी बात पर वो यासियत से मुस्कुराई। कम अज़ कम अब ये मत कहिएगा कि आपको अचानक मुझसे मोहब्बत हो गई है।
کیونکہ اب میں وہ پہلے والی خوش فہم علینا نہیں رہی ہوں جو آپ کی بات پر خوشی سے جھوم اٹھے گی۔ اس کی ہنسی میں بہت کاٹ تھی۔ محبت کی تو میں نے بات بھی نہیں کی، انفیکٹ بغیر نکاح کے محبت کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں لیکن یہ سچ ہے کہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ وہ لحظہ بھر کے لیے رک کر اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بے یقین سی، بے اعتبار سی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ہولے سے مسکرایا۔ چند دن پہلے تک میں خود بھی بہت الجھا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ ساری الجھنیں سلجھ گئی۔ گہری سانس کھینچتے لمحاتی توقف دیا۔ دیکھو علینا، لائف پارٹنر کے لیے میرا جو تصوراتی خاکہ تھا وہ کوئی ایسا انوکھا اور ناقابل رساں نہیں تھا۔ بس کچھ توقعات تھی میری، ایک باوفا اور مخلص لڑکی کی جو مجھ سے ہی نہیں بلکہ مجھ سے جڑے رشتوں سے بھی اتنا ہی پیار کرے، احترام و عزت دے، اور شاید تم سے گریز بھی۔ تمہاری خود پسندانہ مزاج سے اختلاف تھا۔ اب پتہ نہیں تم غلط تھی یا میرا نظریہ، مگر یہ سچ ہے کہ تم سے اختلاف کا موجب یہی ایک وجہ بنی تھی ہمیشہ سے۔ پھر جس رات چاچا جان اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئے، تمہیں سجدے میں گرے روتا دیکھ کر میری رائے تمہارے بارے میں بدلنے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی اپنوں سے اتنا ہی پیار ہے جتنا کہ مجھے، بس تمہیں اظہار کرنے کا ڈھب نہیں آتا۔ اور جس رات تم نے عثمان سے رشتہ توڑنے کی بات کی، مجھے اور میرے اندازوں کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا۔ جو لڑکی اپنے بھائی کے متعلق کہے جانے والے برے جملوں اور باپ سے ہوئی بدتمیزی کے جواب میں ایک لگژری لائف کو ٹھکرا دے، وہ خود غرض کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بے ڈھنگی لڑکی کو محبت کرنے کے سارے آداب سکھاؤں گا۔ بات کے اختتام پر وہ مسکراہٹ دباتا زمانی لہجے میں بولا، اپنے عثمان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اندیشوں میں گھری پوچھنے لگی۔ اپنے اتنے لمبے چوڑے اظہار نامے کے جواب میں اس قدر غیر متوقع و فضول سوال پر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ وہی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ تو شہباز انکل نے درمیان میں آ کر سارا معاملہ حل کر لیا، ورنہ تو اب تک ہاتھوں اور آنکھوں سے محروم ہو چکا ہوتا۔ وہ جلے بھلے انداز میں جواب دیتے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اینڈ کائنڈلی، مجھے یہ ہرگز اچھا نہیں لگے گا کہ شادی سے محض 12 دن پہلے میری ہونے والی بیوی میرے سامنے ہمارے بجائے کسی تھرڈ پرسن کا ذکر کرے۔ ناگواری کے اظہار پر وہ نادم سی ہوئی۔ سوری، سر جھکائے دائیں ہاتھ کی انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کھرچتی آہستگی سے بولی، اوکے، میرا خیال ہے اب ماضی کو چھوڑ کر مستقبل کی طرف دھیان دیا جائے۔ اس کی سنجیدہ مگر معنی خیزی سے بھرپور بات سن کر وہ کنفیوز سی ہونے لگی۔ میں چلتی ہوں۔ کیوں بھائی؟ ابھی تو بڑی خدمتیں پیش کر رہی تھی، ذرا زخموں کی دوا کر لو پھر جانا۔ وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ کٹ لیے اس کے نزدیک آتا زمانی لہجے میں بولا، نہیں میں جا رہی ہوں، تا ابو گھر پر ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، میں کب سے یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ آواز باختگی میں اوٹ پٹانگ بولتی جانے لگی۔ ابو کی ٹینشن مت لو، انہیں میں بتا دوں گا کہ ہم ریسیپشن کی ڈانس پریکٹس کر رہے ہیں۔ اپنے پیچھے اسے خرم کی شوق سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی چھپاتی باہر نکلی۔ دروازے بند ہو جانے کی آواز پر خرم واپس مڑا۔ فرسٹ ایڈ کٹ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مرر میں خود کو دیکھا۔ اپنے چہرے پر اسے بہت سکون اور خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ دوسروں کو خوشیاں دیکھ کر بھی انسان اتنی ہی خوشی محسوس کرتا ہے جتنی اپنی خوشیوں پر۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے جیسے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ تا قیامت علینا کو اس بات کا پتہ نہیں لگنے دے گا کہ اس سے شادی کی وجہ صرف اس کا اچھا لگنا نہیں بلکہ چاچا جان کی وہ حسرت بھری نگاہ تھی، وہ ملال جو اس کے علینا کی حمایت میں بولنے پر چاچا جان کی آنکھوں میں نظر آیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ وہ تصویریں تھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کل کو کوئی علینا محض اپنے مستقبل کے اندیشوں میں کسی عثمان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے، مگر یہ سارے راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کرتے۔ اس پل خود سے ایک وعدہ کیا تھا، اس بے وقوف اور تھوڑی سی سر پھری لڑکی کو کبھی نہ دکھ دینے کا وعدہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپٹن کی رسم ختم ہوئی تھی اور ماما کے منع کرنے کے باوجود وہ چھت پر چلی آئی تھی۔ چائے وہ پلنگ سے ٹیک لگائے بادلوں سے آنکھ مچولی کرتے چاند کو دلچسپی سے دیکھنے میں محو تھی۔ تبھی ماہم کی آواز پر چونکی۔ ماہم مجھ سے کچھ فاصلے پر دونوں ہاتھوں میں چائے کے مگ تھامے کھڑی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، اس نے کپ تھامتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ ماہم اس کے پاس ہی ریکنگ سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ کچھ خاص نہیں، اس نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ گرم چائے اس کے تھکے اعصاب کو بہت تقویت بخش رہی تھی۔ تم خوش ہو نا علینا؟ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرد لباس میں اس کا سادہ سا چہرہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ اتنے اچھے تو ہیں بھائی، اور تم کیا چاہتی ہو؟ ماہم جیسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی، تبھی رنجیدگی سے بھائی کا دفاع کیا۔ علینا نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑا تھا۔ میں چاہتی تھی میری زندگی میں جو شخص آئے وہ بہت رومانٹک اور ٹوٹ کر چاہنے والا ہو، اور مل کیا رہا ہے تمہارا خشک بور سڑو بھائی جسے ڈھنگ سے تعریف کرنا بھی نہیں آتا۔ اسے ابھی کچھ دیر قبل خرم کی جانب سے ملا
कॉम्प्लीमेंट याद आया जो अचानक सामना हो जाने पर उसने दिया था। वाह, तुम तो बिल्कुल यरकान की मरीज़ा लग रही हो। अपने उपटन की दुल्हन को सराहे जाने का ये अंदाज़ खासा अनोखा था। सरसों का फूल, मुरझाई कली जैसी तशबीहात तो सुनी थी, मगर यरकान की मरीज़ा जैसा लक़ब सुनने का तजुर्बा खासा दिलशिकन था। वो जैसे उसके ज़ौक़ के जज्बात पर रशश कर उठी थी। वो माहम को सताने के लिए अपनी परफॉर्मेंस पर इस कदर मगन थी कि दबे कदमों ऊपर आए। खुर्रम की खबर भी ना हुई। खुर्रम ना सिर्फ उसके पूरे जुमले से महजूज हुआ था, बल्कि हवास भागता सी खड़ी माहम को आंख के इशारे से नीचे जाने का भी कहा। अब ऐसे में तुम ही बताओ, मेरा दिल उदास नहीं होगा? वो लहजे में रक़्क़त तारी करते हुए बोलते हुए पलटी, लेकिन माहम की जगह खुर्रम को देखकर बड़ी ज़ोर का झटका लगा। आप कब आए? हवास भागतगी उसके चेहरे से हवदीदा थी। जब तुम अपने दर्द दिल की दास्तान सुना रही थी। बड़े इत्मीनान से सीने पर हाथ बांधे उसे शर्म से पानी पानी कर दिया। वो बस ऐसे ही, अलीना की थोड़ी जैसे सीने से चिपक कर रह गई थी। नहीं, अच्छा हुआ मैंने सुन लिया। मुझे लगता है मुझे अपने बनाए खुद साख्ता असूलों को तोड़ देना चाहिए। उसके अजहद संजीदा लहजे पर वो धड़कते दिल के साथ सर उठाकर उसे देखने लगी। गो के मैं निकाह से पहले मोहब्बत का कायल नहीं, पर अब लगता है अमली मुजाहिरा नागुज़ीर हो चुका है। उसके बेबाक अल्फाज पर अलीना के गाल तप उठे। खुर्रम धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसकी सिमत बढ़ने लगा तो उसके तेवरों से खाइफ होती वो बेसाख्ता पीछे खिसकने लगी, लेकिन पीछे दीवार की मौजूदगी ने उसका फासला कायम रखने की कोशिश को नाकाम बना दिया था। और अब सूरत हाल ये थी कि वो उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रख के उसे सिर्फ 1 इंच के फासले पर खड़ा था। अपने लंबे कद काट की वजह से वैसे भी हर जगह नुमाया दिखाई देता था, पर उस लम्हे अलीना को वो खुद पर कहीं ज़्यादा हावी नज़र आ रहा था। वो बामुश्किल उसके सीने तक पहुंच पा रही थी, वो भी उस सूरत जबकि वो उस पर झुका हुआ था। खुर्रम प्लीज़, उसकी शर्ट से उठती दिलफरेब महक उसके हवास मुंतशिर करने लगी। तभी उसके सीने पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए कमज़ोर सी मज़ाहमत की। 2 दिन, बस 2 दिन है मेरी जान, सब्र कर लो। इतना टूट कर प्यार करूँगा कि आजिज़ आ जाओगी। उसके हयामेज़ रूप को नज़रों के रास्ते दिल में उतारते हुए शौक सी बेबाक सरगोशी की और अपने लहजे की हद्दत उसके कान के पास छोड़ता हुआ दूर हुआ। अलीना ने बेसाख्ता अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांपा। खुर्रम को शर्माने की ये अदा बहुत भाई। चलता हूँ, इससे कबल के कोई गुस्ताखी सरजद हो जाए। उसके शर्माने की अदा को दिलचस्प नज़रों से देखते हुए फिर से शौक फिक्रा कसा और उसकी घबराहट से महजूज होकर कहका लगाता नीचे चला गया। उसके जाने का यकीन हो जाने पर उसने अपने हाथ नीचे किए और खुशगवार सी सांस अंदर उतारी। सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो बादलों के टुकड़ों से अटखेलियाँ करता चांद उसे अपनी तरह बेहद खुश और रोशन लगा। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।